Am I properly audible? Yes, you are audible. Okay. First of all, a very good morning and warm welcome to dear participants in workshop organized by IIC BBDI team on the topic rural entrepreneurship in India prospects and government policies. Before proceeding the session, I would like to welcome our honorable chief patrons, Dr. Alka Das Gupta ma'am, chairperson, BBD Education Group, Mr. Viras Sagar Das ji sir, president, BBD Education Group, our respected director sir, Professor Dr. S.S. Chauhan sir, BBD ITM. Now, I would like to welcome our respected eminent speaker, Mr. Ram Sanjeevan Dubey sir. Ram Sanjeevan sir has completed his MCom and B.Ed from Banaras Hindu University. Ram Sanjeevan Dubey sir is a social worker known for his efforts toward the upliftment of poor people, especially scheduled tribes, scheduled caste, and other backward communities. He comes from Mirzapur district of Uttar Pradesh as the member of Yuvak Mangal Dal in Chatahan village. He has an opportunity to get associated with Nehru Yuva Kendra. Sir carried on his social activities such as fighting against taboo of the society. Sir is associated with Vanvasi Seva Ashram, a social civil society involved in education and welfare activities of women and children. Sir and his colleague Narayan Pandey established Manviya Drishtikon Seva Samiti, that is MDSS, a civic and social organization as well as Volunteers Association of Rural Development. With more than 30 years of experience in social development, Sir has helped to empower thousands of rural youth in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. Sir has the ability to communicate complex information in a light way. And due to this ability, various agencies wants to join him. Ram Sajivan Dubey sir has handled various projects in partnership with NABARD, UNICEF, UNDP, ILO, IPEC, DA, JICA, and Government of India itself. Sir has handled various major projects like child right protection, Garima project, which was funded by none other than UNICEF. Sir has even handled various major projects funded by NABARD, that is, Sindhora Watershed Development Program in Mirzapur district, Rural Mart in Mirzapur, Kaushambi, and Sonbhadra district. There are some major themes of various projects which were uh, led by Sir for like gender development, livelihood, and environment, disaster management, health and hygiene, and tons of others. Sir has various achievements and affiliations as well for like best implementing agency of WADI project funded by NABARD, and 102 small ponds have been developed by MDSS under Sir's supervision. And now I would like to welcome our faculty coordinator, Dr. Preeti Mishra ma'am, IIC President, Dr. Abhimanyu Kumar Yadav sir, IIC convener, Assistant Professor Vinay Kumar Yadav sir, Faculty Coordinator. Now, I would like to hand over the mic to our respected Dr. Preeti Mishra ma'am to welcome our eminent speaker. Ma'am, over to you. Thank you, Avinash. And first of all, I would like to say a very good morning to all the persons, all the participants, students present here. Now, I, Dr. Preeti Mishra, President IIC BPD ITM, wish you all and one present here and welcome you all. I extend my gratitude to Honorable Chairperson BBDEG Dr. Alka Das Ma'am, President BBDEG Shri Viraj Sagar Das Ji for providing this wonderful opportunity. I welcome and extend my gratitude to respected Professor Dr. S.S. Chauhan sir for guiding and motivating us for such blissful events. And
I welcome and extend my gratitude to all the faculty members, students who have shown their interest and who are gracing the session. I welcome all my dear students of the BBD group. And now I owe a very warm welcome and good morning to our respected resource person, Sri Ram Sajivan Dubeji. He is a renowned social entrepreneur, as we have listened all so many things Avinash told about him to us. And Sir is like a gem for this country, and he has a vast experience in pan India in this field. And he has uncountable rewards and achievements. Actually, we cannot sum up it in some few words. So it is very vast, and Sir is having a vast experience in this social entrepreneurship, rural entrepreneurship. He has done lot of social work, and he has done a lot of he has actually developed many integrated models for the rural development, which have been awarded by the government. And Sir is the co-founder of Manvi Drishtikon Seva Samiti and many other few more organizations he has also established. So, without wasting much of time, we would like to have listen his golden words, his experience, and what new things which are coming up, which can help our students to make their career in this field. So, sir, we welcome you again, and we are very eager to listen you. Sir, you can now. It is over to you. सर अब आप शुरू कर सकते हैं सर. सर मल्टीपल शेयरिंग एनेबल है. आवाज जा रही है अभी? जी हाँ सर, जी हाँ. हाँ, थैंक यू प्रीति जी. पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. और आपने ये रूरल इंटरप्रेन्योरशिप पे जो एक बीबीडी की तरफ से इनविटेशन मिला, इसके लिए मैं आपका बधाई देता हूँ, शुक्रगुजार हूँ. और हम चाहते हैं कि जो काम हो रहे हैं वो जन जन तक और हमारे यूथ के पास में पहुंचे. जहां तक रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की बात है, मेरी बात आवाज अगर जा रही है, स्पष्ट रूप से आवाज जा पा रही है? जी हाँ सर, आप एकदम क्लियरली ऑडिबल. यस सर, आ रही है सर. बहुत अच्छी ओके, थैंक सर. आप अपनी पीपीटी भी शेयर कर सकते हैं अगर चाहें तो, हमने एनेबल कर रखा है. वो हाँ गौरव जी, पीपीटी के लिए देखा. ठीक है. अभी हम लोग जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप है, दो चीजों पे चर्चा आज होनी है. एक तो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप और दूसरी की जो कि सरकार की योजनाएं हैं एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट के लिए, स्टार्टअप के लिए, इंक्यूबेशन के लिए, अनेक तरह की, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे. अभी जहां तक हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो हमारे हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ के लगभग है. और अगर उद्यमिता विकास को लिया जाए तो इसमें हम देख सकते हैं कि अगर नौकरियों को देखा जाए तो लगभग 5 करोड़ लोगों को सर्विस और नौकरी मिल सकती है. और वही लगभग 20 करोड़ और समझ लीजिए आप कि 20% प्राइवेट जॉब में उनको इन्वॉल्व किया जा सकता है. बाकी जो हमारे पास में इतना बड़ा जो एक यूथ का टीम है, और हम पीपीटी चाहेंगे कि पीपीटी भी खोल दी जाए हमारी, तो बस ये देखना है कि ऐसे समय में हमारे पास में जो चीजें बच जाती हैं वो ये है कि इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो कि हमारे यूथ के पास में बहुत सारा अभी हमारा यूथ है. अभी हम एक आंकड़ा आपको देना चाहेंगे जो नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 के द्वारा हमको प्राप्त हुई है कि यहाँ पे 40% जो पूरी जनसंख्या है उसका 40% यूथ है हमारे पॉपुलेशन में, रूरल यूथ.
को अगर देखा जाए तो इसमें से 75% हमारा रूरल यूथ है और 25% हमारा जो यूथ है वो अर्बन एरिया से है। और ऐसे में हमारा जो टोटल अगर इस तरह से देखा जाए तो ये जो यूथ का संख्या है, ये किस तरह से हम एंटरप्रेन्योर के तरफ, उद्यमिता विकास के तरफ उद्यम में लगाया जा सकता है, क्योंकि इतना कोई हमारे पास में स्ट्रक्चर, इतने लोगों को सर्विस के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो जो हमारे पास में एकमात्र बच जाता है वो है कि हम उद्यमिता के तरफ अग्रसर हो। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें दिख रहा है कि यूथ जो चाहता है 90% वो चाहता है जॉब सिक्योरिटी, और वो चाहता है कि हमको सर्विस में करूं, चाहे प्राइवेट या नौकरी। और जो 2014 की पॉलिसी एक तरह से नेशनल यूथ पॉलिसी है, उसमें ये हुआ कि स्टार्टअप को लेकर और इंक्यूबेशन को लेकर के बहुत सारे इनोवेशन करने के लिए प्रयास किए गए। और अगर इसको भी देखा जाए तो इसमें देखा जाता है कि 42% इसमें यूथ हमारा जॉब में है या किसी न किसी तरह से वो लगा हुआ है, कुछ न कुछ कर रहा है। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो 60% के लगभग यूथ अभी भी रोजगार और नौकरी की तलाश में है। ऐसे में हमारे पास में एक बहुत बड़ा एक जो शक्ति है, वो उसको हम एंटरप्रेन्योर की तरफ लेके जा सकते हैं। और एंटरप्रेन्योर ही किसी देश का एक, उसको माना जाए कि किसी भी देश का वो मतलब रीढ़ होता है, मजबूती होता है, जो जिसके द्वारा हम उसको देश को मजबूत कर सकते हैं कि हम उद्यमिता विकास के लिए कैसे लेके जाए। अब हमारे पास में दो ही पैसे कमाने के तरीके हैं, दो तरीके हैं। किसी भी तरह से पूरे दुनिया में दो तरह से पैसे कमाए जा सकते हैं। वो एक तो हमारा है कि हम सर्विस करें, नौकरी करें, और दूसरा उद्यम करें, व्यवसाय करें। अब हमारे पास में अब हम देख रहे हैं कि हमारे अगर ग्रामीण परिवेश को देखा जाए, अगर वहां पे देखा जाए तो एग्री वेस्ट अभी बहुत कुछ संभावनाएं हैं, कृषि आधारित उद्यमिता विकास की अपार संभावनाएं, उस तरफ हम यूथ को लेके जा सकते हैं। हम आज आपके साथ में जो बात करने वाले हैं वो हम बहुत सारी चीजों को, जो हम लोग इस 25-30 वर्षों में जो हमने कुछ किया है, कुछ मॉडल डेवलप किए हैं, और कैसे हमने एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया है, रूरल यूथ को किस तरह से उनको कृषि कार्य से जोड़ करके उनके इनकम जनरेशन एक्टिविटीज को बढ़ाया गया है, और किस तरह से पढ़े लिखे यूथ इसको बेहतर समझ पाते हैं और बेहतर कर भी रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे मॉडल, अगर आप लोगों को चांस मिले, आपको कभी इधर आना हो ईस्टर्न यूपी में, तो मिर्जापुर, सोनभद्र में बहुत हमारे मॉडल डेवलप हैं, जो मानवीय दृष्टिकोण ने उस मॉडल को डेवलप किया है, जिसको सरकार और विभिन्न यूनिवर्सिटी के बच्चे भी आकर के उसको देखते हैं। बीएचयू के जो सोशल सेक्टर के बच्चे हैं, बीए के बच्चे हैं, वो सब आकर के हमारे मॉडल को देख रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसमें हम दिखा सकते हैं कि किस तरह से हम यूथ को इन्वॉल्व करते हैं। पहले ग्रामीण स्तर पे किस तरह से हम उनके साथ में बैठते हैं, या यूनिवर्सिटी में किस तरह से हम बच्चों के साथ में बैठते हैं। और इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें मोबिलाइजेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी की जाती है संस्था के माध्यम से, और उनको चाहे महिला हो और चाहे पुरुष हो, उद्यमिता को क्षेत्र को अगर देखा जाए तो आप पाएंगे कि हमारी जो आधी आबादी हमारी बहनों की है, वो निश्चित रूप से व्यवसाय से बहुत विरत है। व्यवसाय में अगर बहनों को देखा जाए तो हमारे अगर पूर्वांचल को देखिएगा आप, तो यहाँ पे बहुत कम प्रतिशत महिला उद्यमी आपको मिलेंगे। तो ये अपार संभावना है कि उन बहनों के साथ में मिल करके हम कुछ कर पाते हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि देखिए किस तरह से पढ़ी लिखी बहन
अपना मछली पालन वहां पे कर रही है, फिशरीज का कर रही है, पोल्ट्री का कर रही है, और एक साथ फिशरीज और पोल्ट्री के द्वारा वो इनकम जनरेशन एक्टिविटीज में लगी हुई है, अपनी आमदनी को बढ़ा रही है, अपने समय का सदुपयोग कर रही है और भी कर पा रही है। इसमें आपने जो हमको दिया हुआ है कि वो रूरल यूथ, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए, तो मैं यहाँ पे एक चीज और दिखाना चाहता हूँ। ये जो चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें समूह की बहनों के द्वारा एक ग्राम दुकान, मतलब गांव में बहुत सारी संभावनाएं हैं, जो गांव में बहुत सारे स्किल हैं, वो परंपरागत हैंडीक्राफ्ट हैं, वहां के कुछ लोकल बहुत सारी चीजें हैं जो बनाई जाती हैं, वो आज विलुप्त हो रही हैं। तो उनको भी हम किस तरह से हम उनको, उन बहनों को हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं, बहनों को हम उसमें जोड़ सकते हैं और उनका इनकम जनरेशन एक्टिविटीज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि उन बहनों का किस तरह से कैपेसिटी बिल्ड करके ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी आप देख पा रहे हैं, ब्यूटी पार्लर का देख पा रहे हैं, और इस तरह से अगर हम कुछ ऐसे सोचेंगे तो ये तो एक तरह से हमारे पास में दो सेक्टर हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के। एक है कृषि आधारित एग्री बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप, दूसरा आप फार्म सेंटर। हम गैर कृषि क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और कृषि क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं। हमारे इतने बड़े यूथ को जो इतनी श्रम है जिसका कि हम लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, हिंदुस्तान में उपयोग नहीं हो पा रहा है, ऐसे यूथ जो कि काबिले तारीफ है और पूरी श्रम शक्ति है, पूरे स्वस्थ हैं, उनको किस तरह से हम लेके आए और व्यवसाय में लेके जाएं। आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, एक यहाँ पे एक मॉडल है जो कि हमने कौन बनेगा बिजनेस लीडर, ये हम एक प्रोजेक्ट वर्क ऑफ प्रोग्रेस को लॉन्च किए हुए हैं ईस्टर्न यूपी में। हमारे डोनर डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स और लक्कासिया बैंक फाउंडेशन स्पेन है, और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वहां पे हमने एक प्रज्ञा देवी, जिनको अभी सक्सेस स्टोरी में हम आगे आपको दिखाएंगे, ये इनको ई रिक्शा दिया गया, जो पूर्वांचल की पहली ई रिक्शा चालक हुई, और आज वो अपने परिवार को बहुत, जबकि ये काफी मतलब वीकर सेक्शन से आते हैं, और इन्होंने अभी अपनी आमदनी इतनी अच्छी कर ली है कि इन्होंने अपने हस्बैंड के लिए भी एक ई रिक्शा रख दिया है और खुद ई रिक्शा चलाती हैं। और अब मिर्जापुर में काफी ये प्रसिद्ध है प्रज्ञा देवी का ई रिक्शा। और दूसरा यहाँ पे देखिए ये बसारत जी है, बसारत जी 7 लेयर इन्होंने सब्जी प्रोडक्शन किया है। 7 लेयर यानी हम ये बता सकते हैं इनको कि ये जैसे हमारे पास में 5 बिस्वा जमीन है, तो जमीन अगर तो बहुत महंगी है, पैसा नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन जो आधुनिक तकनीक आधारित कृषि पद्धति है, इसको इन्होंने 7 लेयर, अब आप सोचेंगे कि 7 लेयर कैसे प्रोडक्शन हुआ, तो हम आप सभी लोगों को ये बताना चाहेंगे कि इसमें जो भी हमको सुन पा रहे हैं लोग, ये नीचे जो जमीन के अंदर है वो चुकंदर पैदा कर रहे हैं, मूली, सलजम, अनेक तरह का चीजों को कर रहे हैं। उसके ऊपर जो है वो नीचे हल्दी, अदरक, ये सब भी पैदा कर रहे हैं, और उसके ऊपर वो जो अब जमीन के ऊपर दिखाई पड़ रहा है वो है धनिया और मेथी, पालक, इस तरह की चीजें। और उसके थोड़ा सा ऊपर जाकर के वो पैदा कर रहे हैं बैगन, मिर्च, टमाटर, और उसके ऊपर भी जाकर के वो पैदा कर रहे हैं लतादार सब्जियां, कद्दू, कोहड़ा, नेनुआ, लौकी, और उसके भी ऊपर आप जाएंगे तो वो Everyone mute yourself. Raj Kishore ji, mute yourself. जी 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 Yes sir, continue. जी, आवाज जा रही है? हाँ हाँ सर। हम एक जो चीज यहाँ पे बताना चाहते हैं वो ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई हमारे युवा उद्यमी या रूरल यूथ थोड़ा भी आइडिया अगर उनके पास में होगा, तो जो व्यवसाय होता है, व्यवसाय से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक बहुत मतलब एक अपने आदिवासी को यहाँ पे ला रहे हैं, ये सोनभद्र के आदिवासी हैं, इनका नाम है गोविंद जी,
और आप देख पा रहे हैं कि ये बहुत ही ज्यादा उम्र के हो गए हैं। मैं इसलिए ये स्लाइड रखा हूं कि हमको ये देखना है कि किस तरह से हमारा जो कार्य करने की क्षमता है, सर्विस जब तक हम यूथ है, युवा है, तब तक तो हम सर्विस कर सकते हैं, इसके बाद में हट सकते हैं। लेकिन जो व्यवसाय है, जो इंटरप्रेन्योरशिप है, जो उद्यमिता है, उसको हमारा वृद्धावस्था ही नहीं, मेरा पीढ़ी दर पीढ़ी उसको आगे लेके जा सकता है। हम आज यही बताने के लिए यही कुछ मॉडल जो हमने किए हैं, वो हम अपने यूथ को, अपने साथियों को ये बताना चाहेंगे कि किस तरह से आप देख रहे हैं। पहला जो स्टेप है, ये जो पहला फोटो है ऊपर के बाएं साइड से, वो जमीन का स्थिति आप देख रहे होंगे। अब ये इनको थोड़ा सा कुछ सरकारी योजनाओं का इनको सपोर्ट हुआ था, जिसमें इनका मेड़बंदी करवाया गया। अब आप देख रहे हैं कि उनके खेतों में नीचे जो दाहिने साइड में एकदम नीचे है, स्टेप 5 पे आप देख पा रहे हैं कि वो वहां पे उपज होना शुरू हो गया है। और बाएं साइड में जो चौथे पे है, वो किस तरह से हाथ ऊपर करके वो हमारे बड़े बुजुर्ग बड़े खुश दिख रहे हैं। इसका सेकेंड फेज भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब इतना काम हो गया तो वहीं पे बगल में एक चेक डैम को बनाया गया, जिसमें भारत सरकार उसके लिए आगे आया और वहां पे 1000 हेक्टेयर में खेती की जा रही है, वो बंजर जमीन में। पानी को बचाना है, पानी को बचाने का एक संदेश हमको, यही मेरा फायदा है। हम जो प्रकृति ने दिया है, ग्रीन उद्यमिता विकास कैसे किया जाए। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमने पानी को रोक करके, बरसात के जल को रोक करके, जहां पे सूखा था, जहां पे बंजर जमीन थी, अनुपजाऊ जमीन थी, वहां पे आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा ये इतना बड़ा हम लोगों ने, जो हमारे लोग हैं, उन लोगों ने इस वाटर सेट प्रोजेक्ट में काम किया है और जो पर्यावरण संरक्षण है उसका संदेश दिया है। जल को बचाना है, जल का बजटिंग करना है मुझे। बनाना है। और जो उद्यमी होता है, अगर उसने बजटिंग करना सीख लिया, उसका बजटिंग करना, तो उसकी सफलता सीढ़ी वहीं से शुरू हो जाती है। आप ये देख पा रहे होंगे, ये बर्मी कंपोस्ट यूनिट है, बर्मी कंपोस्ट यूनिट है। और आज हमारे यहाँ पे इतने सारे मॉडल इसके डेवलप हैं कि मैं इसका सप्लाई विदेशों में कर रहा हूं। ये बर्मी कंपोस्ट हमारा जा रहा है। हमने कुछ एफपीओ इजाद किए हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ये किसानों को संगठित करके उनको किसान कंपनी का मालिक बन रहा है। और इसमें नाबार्ड ने हमको सहयोग किया और मैंने यहाँ पे 20 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, जिसमें अभी आप गूगल पे देखिएगा, बहुत सारे मेरे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, बिंद सब्जी बीज प्रोड्यूसर कंपनी, नवचेतना एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी। नवचेतना एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी के विषय में मैं बताना चाहूंगा कि इनके टमाटर, इनके मटर की छिमी विदेश लंदन में जा रहे हैं। लंदन में हम भेज रहे हैं इनके मटर को, हरी मिर्च को और इनके टमाटर को। आप ये देख पा रहे होंगे कि ये किस तरह से ये किसानों को थोड़ी ट्रेनिंग दे करके इंटरप्रेन्योरशिप, किस तरह से रूरल यूथ को इसमें आगे ला करके उनको संभावनाएं, बहुत सारी संभावनाएं हैं, इस व्यवसाय को हम आगे कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम एक जगह पे और आपको ला रहे हैं कि जो आप देख पा रहे होंगे कि ये कितना प्रोडक्शन, यहाँ पे ये किसान इनको एक्सपोजर विजिट कराते हैं। हम यहाँ पे बनारस में भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र है और हम किसानों को ले जाते हैं, वहां पे 2-3 दिन तक के रुकते हैं और वहां पे हमारे यूथ होते हैं, वो यूथ को उनको ट्रेनिंग दिया जाता है और एक्सपोजर करा करके उनको वहां पे जो सीखे वो आके यहाँ पे प्रयोग करें। ये आदिवासी गांव है, ये जो चित्र है ये बघमा है, सोनभद्र जनपद के नगवा ब्लॉक का बघमा गांव है। अब आप देख पा रहे हो कि आदिवासी का जो खेत है वो कैसा है ऊपर, और इसको मैंने 5 साल में मैंने वहां से शुरुआत, बाएं साइड ऊपर से आप देखेंगे, आप नीचे तक आइए, आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से बदलाव हुआ है। सेकेंड पे ले जाए। ये देखिए, अब आप इस चित्र को देखिए,
वही स्थान आज 5 वर्षों में ये इस तरह से फ्रूटिंग वहां पे शुरू हुई है। अमरूद और आम कि वहां पे ट्रक से अमरूद और आम इनका भेजा जा रहा है। ये प्रज्ञा देवी है। प्रज्ञा जब हमको मिली थी तो ये इनके पास में 4 बच्चों की ये माँ है। एक छोटी सी झोपड़ी थी। आज आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हाईलाइट हुआ है, समाचार में भी इनका डीडी न्यूज ने कवर किया था। बहुत सारा ये सक्सेस स्टोरी है। पूर्वांचल की पहली ई रिक्शा चालक प्रज्ञा जी, और प्रज्ञा जी के हौसलों से महिलाओं को मिली एक पहचान। ये रोल मॉडल है, ये जो हम दिखा पा रहे हैं एक रोल मॉडल है। ये सादाब जी हैं। सादाब जी का जुड़ाव जब मुझसे हुआ था तो आप देख पा रहे होंगे कि इनको किस तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग करके और मोटिवेशन प्रशिक्षण देके मार्केटिंग में सहयोग किया गया है। आज ये राष्ट्रीय स्तर पे अपने सामानों की प्रदर्शनी लगाते हैं और बहुत बड़े स्तर पे ये सक्सेस हुए हैं। आज यहाँ पे एक इनका ट्रेनिंग सेंटर भी है। वहां पे इन्होंने 18-20 लोगों को इन्होंने रोजगार दिया हुआ है और इनकी इस समय लगभग 40,000 रुपए स्वयं अपने घर पे रह रहे हैं। 40,000 रुपए कमाते हैं महीना, इनका आमदनी है। उसके साथ साथ ये 18 लोगों को इन्होंने रोजगार से जोड़ा हुआ है और इन्होंने भी बस ये था कि पढ़े लिखे थे और ये कुछ करना चाहते थे। तो जो उद्यमी का गुण है उस पे हम अभी चर्चा करेंगे। सॉरी, ये राम सूरत जी हैं। राम सूरत की जमीन और फिर उनमें जमीन में जो बदलाव किए गए हैं वो आपको दिख रहा है जी। नेक्स्ट। अभी इसको तो बैक में ही करके रख दीजिए जी। हाँ, मेरी आवाज जा रही है? जी सर, आ रही है। हाँ यस सर। हाँ, कुछ अगर बीच में कुछ प्रश्न करना है, कुछ पूछना है तो पूछें और फिर जो भी प्रश्न आए वो जरूर आप पूछिएगा। एक चीज मैं बताना चाहूंगा जहाँ पे रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का है। ये तो बहुत सारे मॉडल हैं, कुछ मॉडल मैंने आपको दिखाया है। यस सर। कि किस तरह के एंटरप्रेन्योर सिर्फ ग्रामीण स्तर पे या सेमी अर्बन एरिया में हम शुरू कर सकते हैं। इससे शायद कुछ युवाओं को प्रोत्साहन भी मिलेगा। देखिए, आज हम मानते बोलते बहुत वेस्ट। मैं ये बोलता हूं कि कोई सामान वेस्ट नहीं होती है, वेस्ट से भी वेस्ट बनाया जा सकता है। तो मेरा बस ये कहना है कि उद्यमिता के कुछ ऐसे आयाम हैं जो कि अगर यूथ में आ जाए, युवाओं में आ जाए तो वो बहुत आगे अपने उद्यम को लेके जा सकते हैं। देखिए, एक तो अपना खुद का मालिक होते हैं उद्यमी, जो है एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वो अपना स्वयं का मालिकाना हक उनका होता है और इसमें अपार संभावनाएं हैं पैसा अर्जित करने का। हम इकोसिस्टम को अगर देखें तो बहुत सारी चीजों को लेकर के हम काम कर सकते हैं और इसमें अगर हम एक चीज लेके जाना चाहें तो हम एक चीज पर बताना चाहेंगे कि किसी भी देश का जो आर्थिक उन्नति है उसमें औद्योगिक प्रगति का बहुत बड़ा महत्व है, व्यवसाय का, एंटरप्रेन्योरशिप का। और ये जो औद्योगिक प्रगति अनिवार्य है, औद्योगिक प्रगति पे बहुत सारा देश के विकास का निर्भरता टिकी होती है। उसमें उद्यमिता जो है, और यह सब उद्यमिता के से ही संभव होगा, उद्यमिता से ही संभव होगा कि हम सभी हाथ को काम दें, सभी हाथ
काम में लगे, हाथ लगे निर्माण में, सबके उत्थान में, ये एक नारा भी था। और इससे इंटरप्रेन्योरशिप से क्या होता है? इंटरप्रेन्योरशिप से पूंजी का विकेंद्रीकरण होता है और जो एकाधिकार है उसको कम किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो बेरोजगार व्यक्ति है वो या कुछ करना चाहते हैं, उनको तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा, अगर कोई उद्यमी बनना चाहते हैं मिर्जापुर शहर से सटा हुआ धनीपट्टी गांव की, मेरी मुलाकात उनसे 2018 में हुई थी और वो एक बहू थी। मेरी मीटिंग गांव में चल रही थी। मैं इसमें थोड़ा एक इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, जो रूरल इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का काम हम कर रहे हैं, ये डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स और लक्कासिया बैंक फाउंडेशन स्पेन के सहयोग से, तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि मैं एक मीटिंग में था और वहां पे मोटिवेशनल डायलॉग चल रहे थे। मैंने एक टूल्स इजाद किया है इंटरप्रेन्योरशिप का, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उसमें 4 चीजों को मैंने लिया है। एक डायलॉग, दूसरा जो मैंने लिया है वो को क्रिएट लिया है, और तीसरा प्रोटोटाइप, और चौथा जो है एक्सीलरेशन या लर्निंग। तो हम ये बताना चाहेंगे कि गौरव जी, वो जो टूल्स है मॉडल्स वो जरा सा लाइए। तो उस चीज को मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह से ममता जी अभी आगे बढ़ी। आज वो आइसक्रीम अमृता है, उसके नाम से उनका अच्छा से आइसक्रीम चल रहा है। अभी पूरे मिर्जापुर में, पूरे आसपास के अंचलों में उनको बहुत अच्छे उनके व्यवसाय चल रहे हैं। और कम से कम वो जो ममता देवी है, जो एक बहू थी जिनके पास में 2 बच्चे हैं, दोनों बिटिया है, और वो अभी वो एक मालकिन की हैसियत से वहां बैठती है, घर का भी पूरी जिम्मेदारी लेती है, अपने आइसक्रीम फैक्ट्री में भी मिलती है, और कम से कम 20 मतलब उनके रिक्शा चलते हैं जिसमें कि वो भर करके आइसक्रीम पूरे क्षेत्रों में जाता है। बड़े बड़े जो होटल है वहां पे भी उनके आइसक्रीम जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे इंटरप्रेन्योरशिप को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। जो गुण होना चाहिए एक उद्यमी के लिए, मैं युवाओं से ये बात करना चाह रहा था कि देखिए, हम जो सबसे बड़ा काम उद्यमिता विकास के लिए, अगर रूरल डेवलपमेंट में उद्यमिता एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है। और हमारी, जैसे सबको पता है कि हमारी 65% आबादी हमारी गांव में रहती है और गांव से यूथ पलायन कर रहा है। जो लोग हमारे यूथ यहाँ पे हमारे साथ जुड़े होंगे वो जानते होंगे, अगर आप पूरे गांव का आप खाका खींचिएगा तो आपको लगेगा कि यूथ है नहीं, हमारे बड़े बुजुर्ग या बच्चे हैं, और जिनका थोड़ा भी संपर्क बैठता है वो परिवार को लेके भी चले जा रहे हैं। तो एक तरह से जो पलायन है उसको भी हम इंटरप्रेन्योरशिप से रोक सकते हैं, और इससे हमारे शहरों में जो आबादी बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहे हैं, उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये देश के हित के लिए भी ये होगा कि हम अपने ग्रामीण अंचलों में बहुत सारी एक्टिविटीज है, बहुत सारे, कहीं पे केले का प्रोडक्शन हो रहा है, केले का फाइबर आप देख रहे हैं कि उससे हम पेपर बना सकते हैं, उससे हम बहुत सारे सजावटी सामान बना सकते हैं, दोना पत्तल बना सकते हैं। इतने अच्छे अच्छे आप लोगों को मैं तो ये चाहूंगा कि कभी भी आप अगर आएंगे तो यहाँ पे आपको देख करके खुद ही आप उद्यमी बन जाएंगे। हमारे बहुत सारे साथी है जो कि बहुत अच्छी पढ़ाई करके मतलब ये करके, इंजीनियरिंग करके, डॉक्टर करके, वो अभी यहाँ पे छोटे से स्थान को लेकर के और वो उद्यमिता विकास के लिए बड़े अग्रसर हैं। मैं नवचेतना एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी की जहां पे बात कर रहा था, डॉक्टर कनकलता जी हैं, उन्होंने ऐसा टमाटर पैदा किया, लंदन उनका टमाटर का ऑर्डर आया और लंदन हम लोगों ने टमाटर भेजा है ईपीडा के सहयोग से। ईपीडा जो होता है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बहुत बड़ी संभावना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ पूरा यूथ बढ़ रहा है, पूरा जनरेशन बढ़ रही है। आप देख रहे हैं
कि किस तरह से हमने केमिकल का उपयोग करके अपने खेतों को अनुपजाऊ बना दिया, खेतों की जो शक्ति थी, मृदा जो शक्ति थी, उसको कमजोर किया। तो हम वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, निडप खाद को हम तरजीह दे करके केमिकल फ्री फार्मिंग को बढ़ावा दें और सब्जी, रसायन मुक्त सब्जी का उत्पादन करें, रसायन मुक्त अनाजों का उत्पादन करें। आज जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि करोड़ों रुपए का बैलेंस शीट हमारे किसान भाइयों का हो रहा है, प्रोड्यूसर कंपनी का हो रहा है। आप देख करके मुझे निश्चित रूप से लगेगा कि आप भी एक सफल उद्यमी बनने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आपको एक मॉडल मिलेगा, और एक नहीं, हम अगर आप ईस्टर्न यूपी में आ रहे हैं तो बहुत सारे मॉडल दिखाएंगे। आपसे सटा हुआ बाराबंकी जनपद के देवा ब्लॉक में मेरा एक छोटा प्रोजेक्ट गोदरेज कंपनी के CSR से संचालित है। तो मैं भी चाहूंगा अगर आपको मौका हो तो वहां पे बहुत सारा चीज नहीं है, वहां पे इंटीग्रेटेड मैंने थोड़ा सा एक उद्यमी हूं और उद्यमी के नजर से देखता हूं। तो उद्यमी वो होता है जो साहसी होता है, साहस की जरूरत होती है, रिस्क उठाने की क्षमता थोड़ा होता है, और अपने को साबित करने के लिए छोटे स्तर से ही शुरुआत करने का मन हो तो कुछ न कुछ शुरू कीजिएगा, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण याद दूंगा। उदाहरण ये है कि हमने जो ये गोदरेज से CSR लिया, इन्होंने एक छोटा फंड मुझे दिया था मेरी कंपनी को। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने हमारे एक मॉडल को देखा, एक मॉडल यानी विनोद कुमार बिंद लच्छापट्टी सिटी ब्लॉक का, मिर्जापुर ब्लॉक का सिटी ब्लॉक का लड़का है, लच्छापट्टी गांव का विनोद कुमार। ये टोपी बेचते थे घूम घूम करके साइकिल पे, और मेरा मोटिवेशनल कार्यक्रम गांव में चल रहा था, कौन बनेगा बिजनेस लीडर। उसमें होता है कि हमारी नुक्कड़ नाटक की टीम होती है लड़के लड़कियों की, ये लोग नुक्कड़ नाटक करते हैं कि किस तरह से हम बिजनेस को बढ़ाते। वो वहां पे टोपी बेचने के लिए सोचा यहाँ पे भीड़ है, मैं भी अपनी टोपी बेचने के लिए, वो खड़ा हो गया, चिल्लाने लगा टोपी 20 रुपए 25 रुपए की टोपी लीजिए। वो साइकिल लेके खड़ा हो गया, सुनने लगा कि यहाँ पे तो व्यवसाय से संबंधित कुछ बात हो रही है। वो जब मीटिंग समाप्त हो गया तो आया मेरी जो कोऑर्डिनेटर है प्रतिभा जी, उनके पास आया और बोला मैं ये काम करता हूँ, मुझे कुछ मार्गदर्शन करो। उसके पास में 3 बिस्सा जमीन थी, मात्र 3 बिस्सा, और कोरोना काल में वो वापस आ गया था। तो टोपी वो थोड़ा बनाता था, सिलाई उलाई कर लेता था और बना बना के बेचता, उससे उतना उसका बिक्री नहीं हो पाता था। तो इन लोगों ने बताया कि ऐसा है कि जो ये आपका खेत है, ये अच्छा, वो भी 3 बिस्सा जो जमीन था ना, किसी को ईंट भट्टे के लिए उसने बहुत पहले दे दिया था, उसके पिता जी, तो गड्ढा हो गया था। तो उन्होंने बताया कि इसमें आप मछली पालन में आप मुर्गी पालन भी करो। तो उसने देखिए क्या किया कि आपको मैं बैंक के स्कीम और सरकार के स्कीम की तरफ अब ले जा रहा हूं। अब देखिए किस तरह से कन्वर्जेंस किया गया। और हम एक चीज यहाँ पे और आपको बताना चाहेंगे कि हमने जो इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का एक मंच बनाया हुआ है, वो यहाँ पे पूर्वांचल में बहुत सक्सेस है। उसको हमने कोलिएशन का नाम दिया है, सम्मिलन। विभिन्न विभाग, सरकारी गैर सरकारी विभाग जो उद्यमिता विकास के लिए काम कर रहे हैं, उनको हमने एक मंच पे हमने इकट्ठा किया है, उसका नाम लिया है कोलिएशन प्रोग्राम। जिसमें जिले में आप सब युवाओं को पता है कि जिले में जिला उद्योग केंद्र होते हैं। जिला उद्योग केंद्र से हमको बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिल सकता है उद्यमिता विकास के लिए। दूसरा, DHO उद्यान विभाग में जो जिला उद्यान अधिकारी है, उनके पास बहुत सारी स्कीमें हैं, बहुत सारे छूट है, बहुत सारे सब्सिडी है सरकार की तरफ से। DD एग्रीकल्चर, उप निदेशक कृषि के यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं हैं, बैंकर के पास में बहुत सारी योजनाएं हैं। और हम यहाँ पे एक स्लाइड आपको देंगे, अभी मैं अपने सहयोगी से बोलूंगा कि वो एक, बल्कि हम कितने स्कीम चल रहे हैं भारत सरकार के, राज्य सरकार के, वो भी हम आपको देंगे। और इसमें जो हमको आगे बढ़ना है वो कि किस तरह से हम एक छोटे प्रयास से अपने जीवन को बदल सकते हैं, और जीवन को बदलने के लिए हमको कुछ तो करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, और उससे संबंधित थोड़ा अध्ययन करें, उससे संबंधित लोगों से बात करें, उनसे संबंधित लोगों को बात करें। तो मैं वही बता रहा था कि जो टोपी वाला व्यक्ति था
आज उसने देखिए अब कितना उसने इंटीग्रेटेड बिजनेस शुरू किया है। वो तो टोपी बनाता है, दो तीन लोग उसके टोपी को घूम घूम करके बेच रहे हैं। दूसरे लोग वो अपना कुर्सी मेज लगा करके मछली पालन के ऊपर ही एक मचान बनाया है, मुर्गी पालन और मछली पालन जहाँ किया है उसमें बत्तख पालन कर रहे हैं, खरगोश पालन भी किया है, वहीं पे वो सब्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, पानी को ट्रांसफर करता रहता है और जहाँ पे मछली पालन हो रहा है उस पानी से बहुत सारा ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है। तो उसने पपीते की सब्जी किया, सब्जी भी उगा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है अभी उनकी आमदनी घर बैठे 20 से 25 हजार हो जा रही है। अब आप सोचिए 3 बिस्सा जमीन और 25,000 रुपए मंथली का इनकम, तो बहुत कुछ संभावनाएं हैं। बस जरूरत है हम सभी को आगे आने के लिए। और जो चीज है इसमें लाभ ही लाभ है और रोजगार के बहुत सारे अवसर हैं। हम दूसरे भाइयों को भी रोजगार से जोड़ सकते हैं और उनका भी पलायन जो शहर की तरफ हो रहा है उसको रोक सकते हैं। और हर एक क्षेत्र में मैं तो कहूंगा, चाहे आप चाहो प्रोडक्शन के क्षेत्र में जाओ, चाहे आप एग्री वेस्ट प्रोडक्शन के क्षेत्र में जाओ, चाहे कंपनी, आप अपना चॉइस खुद कीजिए। इसमें मैं मान सकता हूं कुछ हमारे भाई बहन जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, वो इंटेलिजेंट है, वो अपने को निर्णय ले सकते हैं कि हमको किस क्षेत्र में जाना है। जो उससे कम पढ़े लिखे हमारे रूरल यूथ है उनको भी खाना दे दूध, लेकिन निर्णय उनको ही लेना है, निर्णय उनको ही लेना पड़ेगा। हम यहाँ पे कंटिन्यू जारी रखें। प्रीति जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। प्रीति जी इसको कंटिन्यू करना है। मैं अभी मेरे पास कितना समय है प्रीति जी? मैं एक बार सर 12 o'clock तक आराम से आप कर सकते हैं सर। ओके मैम। यस सर। और सर आप आगे भी करना चाहें तो कर सकते हैं सर। 12:30 तक तो हम लोग आराम से चल सकते हैं। तो बच्चे अपना क्वेश्चन जी अभी क्वेश्चन आंसर पे मैं 5 मिनट तक और चर्चा करूंगा। इसके बाद में क्वेश्चन कुछ लेंगे, फिर उसके जवाब देने के बाद में फिर आगे का। यस सर ओके। एक तो अपना क्वेश्चन लिख करके रखिएगा और हो सकता है किसी एक प्रश्न का उत्तर हो सकता है कई लोगों के मन में आए तो उसको भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, या आप जहां से प्रश्न आएंगे आप प्लीज जरूर बताइएगा। इसमें हम एक चीज हम बताना चाहेंगे कि एक सफल इंटरप्रेन्योर के क्या गुण है, एक उद्यमी के क्या गुण हो सकते हैं, वो आपको स्वयं इसका आकलन करना है। इस बिंदुओं को आप चाहे तो लिख सकते हैं और इसको जरूर देखिएगा कि उस पे हम कितने खरे हैं। एक तो जोखिम वहन करने की क्षमता। व्यवसाय है, व्यवसाय में जोखिम हो सकता है, उसके लिए भी हमको तैयार रहना पड़ेगा। दूसरा है व्यवसाय मुस्कान के साथ। एक सफल उद्यमी जो होता है उसमें खुशी, आनंद, प्रसन्नता का बहुत बड़ा महत्व है। तीसरा जो एक सफल एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल है और जो गुण है वो यह है कि निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय लेने में देर नहीं करना चाहिए एक उद्यमी को। अगर निर्णय लेने में वो देर कर रहे हैं, यानी अपने उपक्रम, अपने व्यवसाय को वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनको निर्णय लेना है और हमेशा सकारात्मक रूप रखना है। अपनी कल्पना शक्ति को मजबूत करना है। कल्पना शक्ति यानी चिंतन, नया इनोवेशन, कुछ भी इनोवेशन करने के लिए, जैसे कुछ आइडिया अगर आपके पास है, जैसे हम आपको यहाँ पे जो हमारा अभी स्लाइड आपने देखा होगा उसमें वर्मी कंपोस्ट का था, टेट्रावेट लगाए गए थे, उसमें गोबर डाले गए, गोबर और उसमें एक केचुआ डाला गया है, कई केचुए, मतलब एक प्रकार का केचुआ जो गोबर को खाता है और बीट करता है, वो वर्मी कंपोस्ट होता है।
और वो चाय की तरह होता है, चाय की जैसे पत्ती है वैसे ही वर्मी कंपोस्ट है। और इसको अगर आप हमारे यहाँ मिर्जापुर में ले रहे हैं, हमारे जहां से प्रोडक्शन हो रहा है वहां से ले रहे हैं, तो मैं 7 रुपए केजी उसको देता हूँ। और अगर आप तक पहुंचाऊंगा तो उसका अलग है। अभी बहुत सारे मैं पैकेट, वहां पे पैकेट होगा, 1-2 पैकेट आप लाइएगा। तो मैं ये आपको बता रहा, ये अभी ओमान, बांग्लादेश, श्रीलंका में हमारा वर्मी कंपोस्ट जा रहा है। और इसको कल्पना शक्ति, यानी मैं कल्पना शक्ति की कल्पना शक्ति का, इसको थोड़ा सा मेरा स्क्रीन पे लाइएगा। मुझे कल्पना शक्ति का मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि कुछ न कुछ आपको स्वयं सोचना पड़ेगा। दीजिए, हो जाएगा, इतने में हो जाएगा, ठीक है। मुझे अगर देख पा रहे होंगे तो आप ये देखिए, ये देख पा रहे होंगे आप, ये वर्मी कंपोस्ट है भू शक्ति नाम से। आप देख रहे हैं, ये इतनी अच्छी पैकिंग है और इसमें गोबर की खाद है। ये पूरा देश विदेश में जा रहा है और बहुत सारा, अब इसमें सोच सकते हैं आप कि कम से कम 70 महिला और 22 पुरुष इसमें लगे हैं। और मेरा इस प्रोजेक्ट का, केवल प्रोजेक्ट का बैलेंस शीट आप देखेंगे तो 7 से 8 करोड़ रुपए जा रहा है और ये 3 साल में हुआ है ऐसे। और इसमें इसका जो बनाने का लागत है, अगर ये विदाउट पैकिंग है तो मात्र 50 पैसे केजी लागत लगता है। अगर पैकिंग के सहित आ जाएगा तो 1 रुपीज केजी, यानी अगर आप 10 रुपए में इस पैकेट को बेच रहे हैं तो 9 रुपए प्राप्त होते हैं। और इसका जो डिमांड है वो हम इस डिमांड को दे नहीं पा रहे हैं। ये 2 तरह के पैकेट आपके सामने मैं दिखा रहा हूं और आप देख पा रहे होंगे कि ये पैकेट पे बहुत सारा बस वही है कि किस तरह से हमको देना है। और इसको हमारी दक्षिण कोरिया सरकार ने इसको हमारा मान्यता दिया है कि 95% ये हमारा जो वर्मी कंपोस्ट है ये प्योर है। और दक्षिण कोरिया से हमको बहुत सारा ऑर्डर मिले हैं और आने वाले समय में हम दक्षिण कोरिया में भी ये वर्मी कंपोस्ट सप्लाई कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, इस काम में बहुत सारे यूथ लग सकते हैं। अगर वो वहीं पे, मैं उनको मार्केटिंग के लिए बहुत सारा लिंक दे दूंगा। आप अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ जानते हैं ये क्या है, ये वर्मी कंपोस्ट जो है गोबर है। आप किसी भी गांव में देखिए, गोबर अनावश्यक फेंके गए हैं और बरसात में तो और ज्यादा स्थिति खराब हो सकती है। तो ऐसे किसी भी चीज को, वही मैं कह रहा था, वेस्ट नहीं समझना है। उस वेस्ट को कैसे हम रिसाइकिल करें और कैसे उसको बनाएं कि बहुत बेहतर हो जाए। हमारा कौशाम्बी में केले का कारोबार होता है, केले के प्रोडक्शन होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पे केले के जो है, केले का वो फाइबर जो तैयार किया गया है वो कंपनियों को दिया जा रहा है पेपर बनाने के लिए, गिफ्ट आइटम बनाने के लिए। और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में भी उसके लिए बहुत सारा फंड जनरेट है और उसको करके यूथ गूगल सर्च करके या उसको इसको देख करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं कुछ यूथ को ये सजेशन दूंगा कि आप कभी भी अगर इधर आना हो तो आप आइए, बहुत सारे मॉडल हम दिखाएंगे। हम जो भी चीज कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई मेरी जरूर एंटरप्रेन्योरशिप पे नहीं हुई है, लेकिन अनुभव जो 30 वर्ष तक का अनुभव है, हमने यहाँ पे सैकड़ों कंपनियां युवाओं की डेवलप करवाई है। उनको सरकार से जो स्कीम है उसको दिलवाई है और इस तरह से लाखों यूथ आपको मैं दिखाऊंगा। इधर आदिवासी बेल्ट में आप जाएंगे, ऊसर बंजर जमीन थी, उनके पास श्रम जानते हैं कितने मजबूत वो लोग होते हैं, इरादों के भी बहुत पक्के होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं। वो उनका खेत ना एकदम उबड़ खाबड़, कुछ भी नहीं कर रहे थे। अभी आप देख रहे हैं कि जो आम और अमरूद उनका प्रोडक्शन हो रहा है वो पूरे इंडिया में जा रहा है, ट्रक में लद लद के जा रहा है। तो ऐसा आदिवासी जो मात्र कुछ भी नहीं लिखना जाए, ये राम सूरत जो ये अभी भी शायद स्लाइड पे आपको दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, राम सूरत जो ऐसे मूंछ ऐसे लगा रहे, ये राम सूरत ने एक ट्रैक्टर खरीद लिया था, पता नहीं कैसे करके, और बहुत पहले का बात है और इनके ऊपर रिकवरी वगैरह सब आ गई थी। मैं जब इनसे मिला तो ये भागे भागे फिर रहे थे और मुझे मैं बैंक का भी सहयोगी, मैं दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड का मैं बहुत बड़ा पार्टनर हूँ इंडिया में। और
मुझे रिसोर्स के रूप में बोर्ड जो है आपके लखनऊ में, बोर्ड में हम जाते हैं एज ए गेस्ट फैकल्टी, और हमको पूरे इंडिया में हमको आना जाना होता है। तो हम अपने अनुभव को ही बताते हैं, हमारा बड़ा इंटरप्रेन्योर पे उतना नहीं है, लेकिन हमने जो मॉडल डेवलप किया है, हमारी मॉडल को सराहा है और सरकार ने उस मॉडल को लिया। मैंने हमेशा पायलट किया है। आपको बताएं, जैसे मेरे परिचय में बताया जा रहा था, अविनाश सर द्वारा बताया जा रहा था कि मैंने गरिमा प्रोजेक्ट किया है। तो गरिमा मैं आपको बताना चाहूंगा एक छोटा सा, कि गरिमा जो है वो रूरल यूथ जो यंग गर्ल है, वो मिनिस्ट्रियल हाइजीन को लेकर के मैंने उस पर काम किया। अब वो टैबू जो था, पूरा चुप्पी था, उस चुप्पी को मैंने तोड़ा और 1 लाख किशोरियां जो मुझसे अभी भी जुड़ी हुई हैं, और वो कहीं पे भी है 2-3 चीजों पे। एक तो एमएचएम को लेकर, हाइजीनिक पॉइंट को लेकर के, मिनिस्ट्रियल हाइजीन को लेकर के, जीवन कौशल को लेकर के, और बाल विवाह, एंटी चाइल्ड मैरिज को लेकर वो अवेयर है और सब जगह डंका पीट रही है। अभी बहुत सारी लड़कियों ने बहुत सारा पुरस्कार जीता हुआ है। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं हमारे पास में, वो सब कुछ बेहतर कर रहे हैं, और उद्यमिता के क्षेत्र में भी वो शादी होने के बाद में भी अपने ससुराल में जाके अच्छा उद्यम स्थापित कर। तो अभी मैं गुण को लेके था, तो निर्णय लेने की क्षमता हो, कल्पना शक्ति, परिश्रमी होना पड़ेगा। परिश्रम को कोई चारा नहीं है सिवाय मेहनत के। 100 के काम नहीं होगा युवाओं को, कुछ नहीं, बस अपनी ब्रीदिंग तकनीक को सुधारिए, श्वास लेने की क्षमता को बढ़ाइए, और अपनी एनर्जी, उत्साह जीवन, लाइफ इज एंथुसियाज्म, लाइफ इज जॉय, लाइफ इज लव। ये 3 चीजों को अगर हमने फॉलो कर लिया, जीवन उत्साह का नाम है। अगर उत्साह नहीं है तो यूथ हम नहीं है। तो मैं वो जो चित्र दिखा रहा था वही यूथ है। हमारे 80 बरस के 70 बरस के जो चाचा जी है वही यूथ है। युवा उत्साह होना जरूरी है। अगर उसके अंदर उत्साह है तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं और सफल उद्यमी बन सकते हैं। बहुत अपार संभावनाएं हैं। वो खुद ही आंख बंद करके आज सोचिएगा कुछ समय के लिए कि कौन सा उद्यम हमारे क्षेत्र में बेहतर होगा, उसमें आप बताइएगा। जहां भी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ खड़े होंगे। सरकार की योजनाएं आपके साथ होंगी। नेतृत्व क्षमता, नेता लीडरशिप होना चाहिए, और सबकी सुनने का भी क्षमता होना चाहिए। आत्मविश्वास नंबर 1 पे होना चाहिए। आत्मविश्वास बिना कोई भी उद्यम नहीं हो सकता। योजना बनाने की योग्यता, इसी में मैं आप सब पढ़े लिखे लोग जुड़े हैं आज यूनिवर्सिटी से, वीवीडी के बहुत जो वीवीडी का प्रयास है उसमें हम सब लोग कितना बेहतर कर सकते हैं। जो भारत सरकार की योजना का प्रयास है कितने लोगों तक पहुंचा पाते हैं, तभी इसकी सार्थकता है आज के कार्यक्रम की। योजना बनाने की योग्यता, आशावादी होना चाहिए, हमेशा आशावादी होके ही रहेगा, होगा यस, अपने जो यस कुछ भी यस, अगर यस जीवन में है तो जीवन हमेशा निरंतर विकास करेगा, आपकी उद्यमिता विकास करेगी। सतर्कता जरूरी है, दूरदर्शिता महत्वाकांक्षी परिपक्व की निशानी है। महत्वाकांक्षी बने और जो भी व्यवसाय कर रहे हैं वो आपकी रुचि के अनुरूप हो, आपके अनुरूप हो। ये गुण आपके अंदर होने चाहिए कि आपकी अभिरुचि हो उसमें। सामाजिक और नैतिक गुण होना चाहिए। सामाजिक और नैतिक गुण जैसा आप समझ रहे हैं कि हम अपने चीजों को कितने बेहतर तरीके से, कितने अपने निष्ठावान व्यक्तित्व से, अपने स्वभाव से, अपनी सरलता से लोगों को अपना सामाजिक परिवेश बढ़ा सकते हैं, उतना ज्यादा हमारा उद्यम अग्रसर होगा, आगे बढ़ेगा। सरल शब्दों में अगर हम इसको देखना चाहें तो उद्यमशीलता को ग्रामीण उद्यमिता, ग्रामीण क्षेत्रों में जो उद्यमशीलता है उसको हम ग्रामीण उद्यमिता मतलब रूरल एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग अगर स्थापित करना है, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना है, तो इससे औद्योगिकरण होगा और देश का विकास होगा। गांव में बहुत अपार संभावनाएं हैं। योजनाओं का नाम तो ऐसे ही बहुत सारी है। खादी ग्रामोद्योग है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, और क्रेडिट योजनाएं बहुत सारी बैंकों की है,
प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन के लिए भी बहुत सारे, जैसे जो भी चीज आप करना चाहेंगे, प्रोडक्शन कर रहे, खाद्य सामग्री से संबंधित कर रहे, तो उसका प्रमाणन लेना पड़ेगा, प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। अगर आप प्रोड्यूसर कंपनी बना रहे हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। सरकार की जो विभाग है वहां से आपको टाई अप करना पड़ेगा। उसके लिए अगर आपको किसी भी तरह की जरूरत पड़ेगी कि इसके लिए कौन सी, क्योंकि कंपनी अगर बनाएंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन अभी शुरुआत में हम आप सभी लोगों से आग्रह करेंगे, अगर कोई भी यूथ कुछ भी करने के लिए उद्यत है तो वो संपर्क करेंगे, उनको आगे ले जाने में सहयोग किया जाएगा और उनको उचित मार्गदर्शन मिलेगा। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, विपणन प्रोत्साहन योजनाएं बहुत सारी हैं, उद्यमिता एवं कौशल विकास के कार्यक्रम हैं, बुनियादी ढांचा विकास के कार्यक्रम भी है, कि मतलब ढांचा निर्माण के लिए भी अभी हमारे 2 प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी को 60-60 लाख रुपए सरकार ने दिया है। 60 लाख रुपए वो बीज विधान संयंत्र की स्थापना के लिए, वो पूरी तरह से 100% वो छूट है, 100% अनुदान है। 60 लाख रुपए। एक मेरा पहाड़ी ब्लॉक में बिंद सब्जी का रेडी हो गया है, और अगर आपके पास समय होगा तो उसका मैं वीडियो दिखा सकता हूँ। मेरे कुछ वीडियो भी बने हुए हैं, अगर समय मिला तो 4 मिनट का 3 मिनट का है, उसको दिखा देंगे। एक नवचेतना जो मैं बता रहा था कि जहाँ पे वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन यूनिट है हमारा, वहां से विदेशों में जा रहा है, उसको भी 60 लाख का भी इसी वर्ष अनुदान मिला है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी प्रथम किस्त 18 लाख जारी किया हुआ है। इसके पहले हमारे जितने भी 20 एफपीओ हैं सबको 15 लाख रुपए में फार्म मशीनरी बैंक, उनमें यानी ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के साथ बहुत सारे टूल्स हैं जो 15 लाख रुपए के हैं, वो 90% सब्सिडी पे दी गई है युवाओं को, और वो लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे विजिट है। आप अगर कहीं पे भी आपका अगर बैच, कोई बैच अगर इस तरह से कोई विजिट करना चाहता है, कहीं पे भी जाना चाहता है, तो मैं मतलब ये प्रीति मैम से भी बोलना चाहूंगा, या आप जो भी यहाँ पे प्रोफेसर जुड़े होंगे उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे। बहुत सारा स्कीम है। यस सर। नाबार्ड का क्षेत्रीय कार्यालय आपके लखनऊ में है। सॉरी, तो नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय से भी संपर्क करके आपके पास में अगर ऐसे रूरल यूथ है और वो कुछ करना चाहते हैं तो उनको आप प्रदेश में अगर ले जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए 1.5 लाख रुपए वो देते हैं, और अगर 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक वो ट्रेवलिंग के लिए वो देंगे, रहने खाने का पूरा व्यवस्था करेंगे। और अगर आप अपने यूपी में कर रहे हैं तो यूपी के लिए भी 1 लाख रुपए है। एक चीज अगर आपको, जैसे केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे इसमें हमको आपने दिया हुआ है, तो और राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, तो आप कहेंगे तो इसको हम भेज देंगे या आपको हम दे सकते हैं अगर उसकी आवश्यकता है। जी, कुछ प्रश्न आ जाए, इसके बाद में चैलेंजेस या और जो चीजें होंगी उस पर चर्चा करें। यस स्टूडेंट्स, और या कोई फैकल्टी में भी अगर कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिए आप लोग। सर आपने बहुत कुछ बताया, और एक चीज बहुत अच्छी थी कि उत्साह मतलब यूथ होता है, और अगर ये उत्साह किसी 60 साल के व्यक्ति में भी है तो वो यूथ ही है असल में। जी जी, मैं पुनः से इस बात पे इसलिए जोर देता हूं कि प्रीति जी, जो सफलता की कुंजी है वो ये जो अपना शरीर है ना, इसी से हासिल होगा। मैं युवाओं से भी बोलूंगा, ये जो आपकी पर्सनालिटी है वो आपके लक्ष्य को लेने के लिए कितना आतुर है, कितनी जिज्ञासा है, जिज्ञासा क्या है, उत्साह क्या है। अगर ये चीज है तो कोई चीज आड़े नहीं आ सकती है। और हम इसलिए युवाओं को ये बताना चाहेंगे कि लाइफ में सफल बनने के लिए जो होता है, उद्यमी जो होता है ना, वो अपना स्वयं का मालिक है, स्वयं का मालिक है। आप देखो, अभी धीरू भाई अंबानी को कौन नहीं जानता, पूरे विश्व के लोग जानते, लेकिन क्या था, वो एक उद्यमी थे। तो उद्यमिता में बहुत सारा स्किल है, बहुत आपको पॉपुलर बनाएगा, सामाजिक दृष्टिकोण से मजबूत बनाएगा। लेकिन हमारी युवा पीढ़ी है
उस तरफ 1%। अगर पूर्वांचल का हमने सर्वे किया है प्रीति जी, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पे उद्यमशीलता के क्षेत्र में युवा बहुत कम, यानी 2% से भी कम कहते हैं मैं मिलता हूं, आप क्या करना चाहते हो? इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, आईएएस बनूंगा, पीसीएस बनूंगा, बैंक में मैनेजर बनूंगा या प्राइवेट जॉब। मैंने कहा था चाय मंगा। तो मैं एक बार पुनः से युवाओं का आह्वान करता हूं कि बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत संभावनाएं हैं, कोई कंपटीशन नहीं है। अपार संभावनाएं, कोई कंपटीशन नहीं। अपार खुला आसमान है, अपने को पंख फैलाए और आगे के लिए सोचे। अगर उसमें कहीं पे भी अगर हमारी आवश्यकता होती है तो हम आपका सहृदय, और मुझे खुशी होगा कि हमारे इस तरह से एंटरप्रेन्योर युवा आ रहे हैं। हम इसको लेके बहुत चिंतित रहते हैं, हमारी संस्था इस पे सर्च कर रही है पूरी यहाँ पे 3-4 यहाँ पे हम स्टडी करा रहे हैं, जिसमें फेजिबिलिटी स्टडी, डायग्नोस्टिक स्टडी और बहुत सारे डीपीआर हम बना रहे हैं। और स्टडी के माध्यम से हम देख रहे हैं कि हमारे किस तरह से यूथ अभी हमने एक पायलट प्रोजेक्ट भारत सरकार को दिया है, यूथ इनहेंसिंग एग्रीकल्चर। मतलब यूथ को हम मॉडल के रूप में 250 यूथ पे मैंने प्रोजेक्ट बना करके उनको भारत सरकार को दिया है। 2.5 करोड़ रुपए का है, और एक 250 बच्चों को मैं वो दिखाऊंगा सोनभद्र जनपद के आदिवासी बेल्ट को लेकर के कि ये यूथ किस तरह से मॉडल और कंपनी बना करके आगे चल रहे हैं, और सरकार की योजनाओं से उनको लिंक अप करूंगा। इसमें एक चीज मैं चाहूंगा, सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है, और सस्टेनेबिलिटी के लिए जो मैंने गुण बताया है वही आपकी उद्यमिता का विकास करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत बड़े स्तर पे आप शुरू कर दो, 10 लाख से शुरू करो, ऐसा नहीं। आप चाहोगे तो बिजनेस 1 लाख से भी शुरू करो। अगर उससे भी कम में जाना चाहते यूथ तो 50,000 से भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और देखिएगा आप कि साल भर के बाद आपका वही बिजनेस बहुत डेवलप करेगा। एक यहाँ पे और युवा महिला जो हमारी अभी छूट रही है, उनको बताना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए नाबार्ड में भी योजना बहुत सारी है, यूथ के लिए भी है। तो उनको ग्राम दुकान, अगर महिला एसएचजी है, महिला ग्रुप है, महिलाओं के ग्रुप पे है, तो उसमें ग्राम दुकान जो मैंने अपनी स्लाइड में दिखाया था, उनके लिए भी नाबार्ड लगभग 4.5 लाख रुपए 2 साल के लिए दुकान का किराया प्लस जहाँ पे सेल्स पर्सन जो बैठेगी उसको वेतन, ये 4.5 लाख रुपए 2 साल के लिए देती है। उसका भी बहुत सारा है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है, बहुत सारी स्कीम है युवाओं को आगे ले जाने के लिए। अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा फोकस है कि किस तरह से इंक्यूबेशन के द्वारा युवाओं की समस्या का समाधान हो और उनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए डेवलप किया जाए। और अभी जो अपार संभावना है वो कृषि क्षेत्र को लेकर के, तो युवा आएंगे, निश्चित है वो सफल होंगे। प्रश्न कुछ हो तो। एक तरफा बहुत ज्यादा हो गया है, मैं तो मुझे तो बोलने की आदत है, बोलते रहेंगे। Yes, लेकिन students. Yes, Avinash, you can ask. First of all, very good afternoon, sir. सर नमस्ते। नमस्ते सर। अरे सर, आप सर मत बोलिए मुझे, मैं स्टूडेंट हूँ सिर्फ। मुझे ये पूछना था आपसे कि आपने बहुत सारे गुण बताए एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होने के लिए। जैसे आपने बताया कि रिस्क टेकिंग एबिलिटीज होनी चाहिए, बीइंग हैप्पी, डिसीजन मेकिंग, इनोवेटिव एंड क्रिएटिव, ऑप्टिमिज्म, एम्बिशन, सस्टेनेबिलिटी, बहुत सारी चीजें आपने बताई। मुझे 2 चीजों को लेकर के प्रश्न है सर आपसे, यस क्योंकि आपका बहुत लंबा चौड़ा एक एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहा है 30 साल का। तो आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे अपनी जिंदगी में। तो जो सस्टेनेबिलिटी है सर, जो टिकाऊ पन है इंसान का, वो तभी हो सकता है जब एक इंसान आशावादी रहे किसी चीज को लेकर के। गुड। तो सर, एक बिजनेस जब इंसान स्टार्ट करता है, स्टार्टअप करता है, तो कभी-कभी ऐसी भी पॉसिबिलिटीज होती हैं जब उसका स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, वो अच्छा नहीं कर पाता है। तो सर, उस फेज में इंसान किस तरीके से जो अपना जो दिमाग है, जो अपना मेंटल स्टेट है, वो किस तरीके से सर मेंटेन रखे? ये मैं आपसे जानना चाहूंगा सर। गुड गुड,
बहुत बढ़िया। ये ऐसी बहुत सारी चीजों से फेस भी होना पड़ा है। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि बहुत सारे उद्यम ठप हो गए थे और बहुत प्रभावित हुए थे। तो इसमें देखिए, वही मैं कह रहा था कि रिस्क टेकिंग जो है, जो एक है कि बिजनेस है, बस इस चीज को सजग रहना है कि अगर सागर है तो लहर होगा, सागर है तो लहर होगा। और इसमें संभावना बस ये है कि जब लहर आए या जब हमारे ऊपर ऐसा कोई सिचुएशन ऐसा बने कि मेरा बिजनेस घाटे में जा रहा है, तो वही सतर्कता है। और मैंने उस गुण में बताया था कि सतर्कता, अवेयरनेस, ये बड़ा जरूरी है कि हम उसको जज करते हैं, अपने बिजनेस को जज करते हैं। जैसे ही मुझे लगे कि नहीं मैं घाटे में जा रहा हूँ, जैसे मैं घाटे में जा रहा हूँ, तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए अभी एक नया आ गया है, नाम आ गया है कि ऐसा कोई व्यवसाय शुरू करें जिसमें कि संभावना ज्यादा हो। जैसे अभी मैं बता रहे थे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, वर्मी कंपोस्ट या इनोवेशन, कुछ अगर ऐसा आप सोच रहे, तो सबसे बड़ी जो आपका जो सस्टेनेबिलिटी के लिए आपका जो प्रश्न है अविनाश जी, इसमें मुझे लग रहा है कि एक तो मार्केटिंग, अब आपको ये देखना है कि मार्केटिंग में हमको समस्या आ रही है या हमको अपने बिजनेस में ही घाटा हो रहा है। जैसे मैंने कोई सामान लिया या उसको बेच रहे हैं और एकाएक उसका सामान कम, तो ये संभावनाओं को कम करने के लिए जो भारत सरकार की योजना है, मैं वही चर्चा कर रहा था कि कन्वर्जेंस से उसको आगे बढ़ाए और उसका बीमा भी कराए। कन्वर्जेंस का मतलब है कि बहुत सारी चीजें हैं जो सब्सिडी आधारित है, उससे भी हम कर सकते हैं। जैसे वर्मी कंपोस्ट को ले, तो वर्मी कंपोस्ट का अगर प्रोडक्शन कोई उद्यमी करना चाह रहे हैं, तो उनको आराम से 50 पैसे केजी खूब आराम से गोबर मिल जाएगा। और उसमें कुछ नहीं, बस अगर जमीन आदमी के पास में है तो टेट्राबेड लगा करके उसको, और पहली बार 2 महीने में वर्मी कंपोस्ट एक टेट्राबेड से लगभग 7 कुंटल 7.5 कुंटल निकल जाता है 2 महीने में। इसके बाद वो 45 दिन पे निकलता रहे, लेकिन पहली बार होता है तो टाइम। तो ऐसा कोई बिजनेस से शुरुआत करें, वही बिजनेस अनेक बिजनेसों को जन्म दे देगा। इसको लिंकेज या विविधीकरण, जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे हम वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं, साथ ही साथ थोड़े से जगह पे सब्जी का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, और वहां पे उसी सब्जी जो नीचे फल रही है उसी के ऊपर पपीता लगा हुआ है, पपीता भी फल रहा है और वो ऑर्गेनिक है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट का हम खाद खुद ही उपयोग कर रहे हैं। तो अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है तो एक तो हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, हमको खुद की सब्जी नहीं खरीदनी पड़ेगी, और हम सब्जियों को दूसरों को दे सकते हैं जो बेच सकते हैं और उससे इनकम जनरेशन कर सकते हैं। थोड़ा सा इस पे सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि ये रिस्क टेकिंग जो आपका प्रश्न है वो बहुत जायज है, बहुत ही जायज है, और उसको हम लोग झेलते हैं। लेकिन अधिकांश अगर हम कन्वर्जेंस से हैं, सरकार से सस्टेनेबिलिटी की के लिए सरकार से संपर्क में है, उसका बीमा करवाया हुआ है, तो ये सब सारी चीजें नहीं होती। जैसे पशुपालन, दुग्ध, डेयरी उद्योग को ले लेते हैं, तो उसमें अगर हमने बीमा करवाया हुआ है, उसका प्रॉपर वैक्सीनेशन हो रहा है, तो यही सब चीज सजगता है कि उस विषय के लिए जो हम व्यवसाय कर रहे हैं उसकी थोड़ी बहुत जानकारी हो। जो जानकारी नहीं है वो ट्रेनिंग द्वारा, हम एक्सपोजर द्वारा, पीयर टू पीयर करके उसको हम अर्जित करें और अपने व्यवसाय में पूरी तन्मयता, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन के साथ उसमें आगे बढ़े। मैं कुछ प्रश्न का उत्तर दे पाया अविनाश जी? जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। अविनाश जी, एक चीज और हम इसमें थोड़ा सा बताना चाहेंगे। अभी हमारी बाराबंकी में एक नजमा नाम की महिला है, बहन है, उसने मछली पालन का व्यवसाय किया हुआ है देवापुर। तो आप लोग कभी जाएंगे तो वहां पे हेमा जी मेरा प्रोग्राम देख रही है और ज्योति आनंद, और आप लोग मिलेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। तो वो मतलब बड़े स्तर पे काम कर रही है, करीब 20-25 लाख रुपए का उनका स्ट्रक्चर है और अच्छा आमदनी कमा रहे हैं। तो बीच बीच में क्या हुआ था कि मछलियां उनके ऊपर आ जाती थी, ऐसे ऐसे करने लगती थी वो तालाबों में।
तो जब उन्होंने पीयर टू पीयर किया तो जब यहाँ पे ये हुआ कि उनका लगातार घाटा हो रहा था, तो लगातार जैसा आपने बताया था उसमें जा रहे थे। तो जब वो संपर्क में आए हम लोगों के, तो उनका एक्सपोजर कराया गया, उनको विजिट कराया गया, और जो साइंटिस्ट है जो उसके मत्स्य पालन विभाग में उनका संपर्क कराया गया, तो जो उनके इंजीनियर है वो लोग गए, और जो वैज्ञानिक है मछली के वो गए, और उन्होंने बताया कि ये कारण क्या है। तो उन्होंने कहा इस पानी को या तो आप जब भी इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है तो पीटिए, या इसमें पंखा लगाइए, या इसमें बतख पाल दीजिए। तो बतख पाल दिए तो वो बतख भी फायदा देने लगा, उसके अंडे देने लगे और वो सब होने लगा। तो इस तरह से उन्होंने अपने घाटे के व्यवसाय को उन्होंने पुनः से इंक्रीज किया और आगे। सर मेरा Anyone एक else? क्वेश्चन है। जी जी Yes, जी Nimish. Nimish, you are saying something? सर जो आपने यदि टेक्निक्स बताई हैं तो इसको क्या हम लोग छोटे एरिया में भी यूज कर सकते हैं? एकदम, जो भी चीजें मैंने आपको बताया है या दिखाया है वो बहुत ही कम पैसे, बहुत ही कम जगह में आप शुरुआत कर सकते हैं। आप जिस चीज का भी शुरुआत करिए, छोटे में करना शुरू कीजिए। आप उसके लिए थोड़ा समय बस दीजिए, बस थोड़ा समय दीजिए, और आपको लगेगा, आपको महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने वो लर्निंग पीरियड होगा आपको, और आप देखिएगा कि बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कल तक दोगे तो बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल आपका तैयार हो जाएगा, और बहुत सारी चीज आप उस चीज को बेहतर रूप से प्रस्तुत कर पाएंगे, क्योंकि इतनी लर्निंग हो जाएगी, इतना अच्छा हो जाएगा। और रही बात, तो इसके लिए बैंकर भी बहुत सारा तैयार है। बैंकर चाहते हैं कि उनको अच्छे उद्यमी मिले, पढ़े लिखे उद्यमी मिले, और हम इसलिए कह रहे थे ना, बाराबंकी में अगर कभी भी प्लान हो तो आप लोग जाके देखिए, वहां पे पढ़े लिखे बच्चे हैं। अभी MBA करके एक बंदा आया हुआ है, और उन्होंने अपना बहुत बड़ा मतलब व्यवसाय शुरू किए हुए हैं, और वो बता रहे थे कि मेरा 35-40 हजार रुपए घर रहते हुए व्यवसाय कमा रहे हैं, दोनों पति पत्नी उसमें लगे हुए, और 10-12 लोगों को और रोजगार मिला हुआ। सर हम लोग आपके बाराबंकी विजिट करेंगे बहुत जल्दी सर, थोड़ा सा ये सामान्य हो जाए चीजें, कोरोना जी वगैरह। जी तो कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत इंटरेस्टेड हैं, और बाकी भी हम देख लेंगे जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में जिनका बहुत रुचि होगा, क्योंकि हर आदमी तो उसमें एकदम टेक्निकल में नहीं जाएंगे ना। और जितनी संभावनाएं सर रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में और एग्रीकल्चर में आने वाले समय में है, वो अगर ये लोग जानेंगे तो मुझे लगता है जो काफी बच्चे इंटरेस्ट उसमें लेंगे भी और जाएंगे भी, जाना भी चाहिए। ये सर एकदम जी जी सस्टेनेबल मॉडल तो यही है, जब हम रूरल एरिया को साथ में लेके चलें, वही सस्टेनेबल मॉडल है विकास का। जी जी बहुत जरूरी है, और पर्यावरण की सर जो एकदम उसके अर्बनाइजेशन, लिए भी हमको सजग होना है। प्योर और अर्बनाइजेशन ग्रीन में जब हम जाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, तो सर उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं जो हम आज हम सब लोग झेल भी रहे हैं उसको, तरह तरह के। एक तो एकदम ये एकदम सही आप। हाँ, पॉल्यूशन है, बहुत सारी चीजें। और रूरल में क्या है, वो एकदम सस्टेनेबल है सर। वहां पे हम वेस्ट को भी यूटिलाइज कर रहे हैं, रिसाइकिल कर रहे हैं, उसको दोबारा अपने यूज में ला रहे हैं, और वास्तव में जीवन जीने की शैली भी वही है। अर्बन में तो फिर हम धीरे धीरे मतलब 50 के होते ही लोग इतनी सारी वो बीमारियों से यही है ग्रस्त भी कि हो अपने जाते हैं। पृथ्वी को बचाना है, जो पृथ्वी माता है हमारी, इस यस सर। धरती को बचाने के लिए ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप पे लोग फोकस करें, और कृषि आधारित जैविक प्रोडक्शन पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, केमिकल फ्री फार्मिंग पे, सर रसायन मुक्त खेती करें। यूनाइटेड नेशन के MDG गोल्स में, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का भी एक पार्ट है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जी 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 इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसको हम सभी लोग अगर बेहतर कर पाएंगे तो एक अपने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। यस। और अगर किसी बेरोजगार हमारा भाई बहन है, उसको अगर एक दिशा दे सके तो बहुत अच्छा होगा। हम यहाँ पे एक जो अभी बताए थे कि छोटे स्तर पे आप खुद कर विकास सकते हैं। रावत सर जी ये विकास रावत है, कुछ पूछना चाहते हैं आप? जी गुड विकास। आफ्टरनून सर। हाँ हाँ गुड सर आफ्टरनून विकास जी। जी सर। सर मैं बाराबंकी का निवासी हूँ सर। गुड।
सर मेरे पिताजी सर एक किसान हैं सर। तो सर मेरे पिताजी ने लॉकडाउन में सर ये जब सब कुछ सर बंद हो गया था तो सर फार्मिंग की, खेती की सर। तो सर जब खेती की तो हमारे वहाँ सर धान की खेती थी। तो सर जब धान की खेती करवाएं सर तो उसमें सर एट द एंड में हम लोग को ये पता चला आखिरी में कि हम लोग घाटे में गए हैं सर। 6-7 हजार रुपए सर घाटे में चले गए, क्योंकि सर मशीनरी का ज्यादा यूज किए हैं सर। और सर खेत सर ज्यादा बड़ा था, इसलिए सर ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाते, मेरे पिताजी अकेले हैं सर। तो सर ऐसे कौन सी सर हम लोग खेती करने जिससे सर हम लोग को फायदा हो ना कि नुकसान हो सर। गुड गुड, बहुत बढ़िया प्रश्न था विकास जी आपका, बहुत बढ़िया, बहुत सुपर, बहुत सुपर। ये प्रश्न का भी हम आशा करते हैं। देखिए विकास जी, धान और गेहूं का फसल करके हम बहुत ज्यादा अपने इनकम को नहीं इंक्रीज कर सकते। आज किसान जो हमारे भाई हैं वो यही गलती कर बैठ रहे हैं। देखिए हमको ना हमको कृषि को व्यवसाय मानना पड़ेगा और व्यवसाय के रूप में देखना पड़ेगा। और वहां पे अगर हम देखिए क्या है ना कि हम धान गेहूं कर रहे हैं तो दो तरह से हमारा जमीन खराब हो रहा है। हम उसमें पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, केमिकल डाल रहे हैं। तो जो भी केमिकल पेस्टिसाइड पड़ रहा है वो हमारी खेतों को बंजर की तरफ ले जा रहा है। उसमें सफेद सफेद वो हमारी मिट्टी हो रही है। तो अगर उसी में विविधीकरण कर दे ना, कहीं पे थोड़े जगह पे हम सब्जी का प्रोडक्शन कर लें, थोड़ी जगह पे हम दलहन का कर लें। तो मोटा अनाज पूरी तरह से विलुप्त हो गया है। मोटे पहले देखिए ना, पहले हमारे बाप दादा लोग करते रहे हैं कि एक ही फसल में ना गेहूं भी डाल देते थे, तिल भी डाल देते थे और दलहन भी डाल देते थे, उसी में बाजरा भी डाल देते थे, उसी में अरहर भी डाल देते थे। अब एक समय में कुछ काट लेते थे, कुछ फलता रहता था और वर्ष भर वो फसल हमारा वहां पे कुछ न कुछ लगा रहता था। तो विविधीकरण पे हम ध्यान दें। हम केवल धान गेहूं पे जाएंगे तो प्रोडक्शन हमारा कम होगा, हमारा जो मृदा शक्ति है, भूमि की जो शक्ति है वो कमजोर होगी, हमारे खेतों की उत्पादकता कम होगी। और हम एक तरह से हम बताना चाहेंगे कि डीडीटी जो दवा है, इतना हमने ज्यादा यूज कर लिया है कि वो गेहूं में चला गया। प्रोटीन में अगर डीडीटी मिल जाता है तो वो हम अलग नहीं कर सकते, कोई विधान है ही नहीं उसको कम निकालने का। तो आप सोच सकते हैं कि डीडीटी हमारे शरीर में चला जा रहा है। प्रोटीन में अगर मिल गया और गेहूं में मिल गया तो उसको हम अलग नहीं कर सकते। तो ये सब शारीरिक रूप से भी हमको कमजोर करेगा, आर्थिक रूप से भी कमजोर करेगा। हम उसमें ना नई तकनीक इजाद करें। बहुत अच्छी अच्छी वेराइटी आई हुई है आपके यहाँ पर, उधर उसमें हम खेत तालाब की एक स्कीम है, छोटे समय में तालाब भी हम रख सकते हैं, उसमें मछली पालन, बत्तख पालन भी कर सकते हैं। उससे सटे हुए जगह पे हम सब्जी की खेती कर सकते हैं। पपीता आप देख सकते हैं कि 30-40 रुपए किलो पपीता इतना बिक रहा है और वो पौष्टिकता से भरपूर है। और उसका हरी सब्जी भी खा सकते हैं, पके पे खा सकते हैं, मतलब उसका मतलब कोई मार्केटिंग का समस्या ही नहीं है। और आप तो एकदम लखनऊ से सटे हुए हैं तो ऐसे जगह पे भी बेहतर कर सकते हैं। हमारे एक बहुत बड़े दोस्त हैं वहाँ पे बाराबंकी में ही, लालपुर के रहने वाले, मैं उनके घर गया था तो उनको भी ये मैंने कहा, तो उन्होंने, वो बहुत बड़े अधिकारी है तो वो दिल्ली में रहते हैं, तो मैंने भी उनको ये सलाह दिया। तो उन्होंने अभी सब्जी का खेती, मेंथा, कुछ जगह पे मेंथा भी कर रहे हैं आपके यहाँ, वो कपूर की खेती जो होती है वो सब भी। लेकिन थोड़ा थोड़ा सभी खेतों में मैं ये कहूंगा, आपका जो प्रश्न का उत्तर है वो ये कि छोटे में कि धान की खेती सब में ना करें, थोड़े में जो खाने होने की चीजें हैं उसमें कर ले, बाकी उसमें मनी वेस्ट प्रोडक्शन करें। मतलब ऐसे कैश कैशलेस कैश को लेने के लिए खेती करें, कैश क्रॉप की खेती करेंगे तो उससे उनको बेहतर। और कैश क्रॉप है सब्जी और या कोई फल हो गया, छोटा छोटा फल भी कर सकते हैं, जैसे पपीता है वो 6 महीने में फलने लगता है। तो ऐसा थोड़ी जगह पे करके देखिए, फिर आप से संपर्क में रहेंगे हम। जी सर, थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। गुड, आदित्य जी। जी यस सर, मेरा ये क्वेश्चन है सर, ये मैं सर फार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है सर, लेकिन थोड़ा सा उससे डिफरेंट है सर। जैसे हम आईटी के स्टूडेंट हैं और मैं सीएस ब्रांच बीबीडीयू से पढ़ता हूँ, एआई से। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर मुझे अपनी स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट करनी है और उसमें सर दिक्कतें ये आती हैं कि अभी स्टार्टअप इंडिया
भारत गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, काफी पहले स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया गया है। और सर एक कहा जाता है कि एक देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ किसानों पे नहीं निर्भर हो सकती, क्योंकि सर किसान, सर ये हम लोग चाहे इसको कितना हो भी एक्सपोर्ट कर लें, सर कृषि सामग्री हम लोग काफी एक्सपोर्ट कर ले, अगर हम लोग इनोवेशन के क्षेत्र में नहीं आएंगे तो सर उससे कोई फायदा नहीं होगा। और सर मैं मेरे पिताजी भी ग्राम प्रधान रह चुके हैं और कई सारे बिजनेसेस भी किए हैं, तो मैं उनके साथ रह के काफी कुछ सीखा हूँ और काफी कुछ उनकी गलतियां भी देखा हूँ और काफी सक्सेस भी देखा हूँ। सर मेरा ये सवाल है कि सर जैसे मुझे एक स्टार्टअप ओपन करना और इसके लिए मैं काफी 4-5 सालों से काफी नॉलेज एक्वायर कर रहा हूँ, और इसमें मुझे सबसे बड़ी एक लूप होल दिखता है कि सर जैसे कोई अपना स्टार्टअप लॉन्च करता है और उसमें जो बड़ी बड़ी टेक जाइंट कंपनीज होती हैं उन सबके पास बहुत ज्यादा कैपिटल होता है, बहुत ज्यादा पैसा होता है, बहुत ज्यादा फंड होता है, तो वो सर छोटी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देती है। और स्टार्टअप इंडिया के तहत सर हम लोगों को एक अमाउंट ऑफ कुछ पैसा मिलता है उस कंपनी को रन करने के लिए, और कुछ इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर, कुछ काफी अलग अलग तरीके के इन्वेस्टर आते हैं, तो सर उन सब के पास कैसे हम लोग पहुंच सकते हैं और अपनी सर्विसेज को कैसे मार्केटिंग अच्छे से कर सकते हैं, इसके बारे में सर आपको कुछ आपका काफी एक्सपीरियंस रहा है 30 सालों का, कई सारे बच्चों को आपने देखे होंगे, कई सारी डाइवर्सिटी आपने भी देखी होगी, तो सर अगर आप इसके बारे में कुछ हमको राय दे सकते हैं तो बिल्कुल दे दीजिए सर। जी आदित्य जी, देखिए आपका प्रश्न जो है वो सभी लोग जूझ रहे हैं, तो मेरा बस ये कहना है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। हर कंपनी, कोई बहुत बड़ी कंपनी है, कोई छोटी है, लेकिन सभी लोग चल रहे हैं। आप देखिए ना, बस जरूरत है कि उसमें कितना हम समय दे पा रहे हैं। स्टार्टअप अगर कुछ कर रहे हैं, आपका यही प्रश्न है कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो जो छोटी कंपनियां हैं वो उसको एक तरह से निगल लेती है और वो अपने मार्केट को लेकर के और उनके सामानों को विक्रय में दिक्कत होती है, यही ना? तो इसमें आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। ये बहुत सारी कंपनियां हैं, अब यही है कि हमारे यूजर भी तो उसी तरह के हैं। कुछ यूजर है कि बाटा कंपनी का ही चप्पल पहनेंगे, कुछ हमारे यूजर है वो हमारा जनरल कंपनियों का भी पहनेंगे, कुछ रूपानी का भी पहनेंगे, कुछ और का पहनेंगे। तो इसमें देखिए मुझे ये कहना है ना, हमको अपने यूजर को देखना है कि अगर हम स्टार्टअप कुछ कर रहे हैं, प्रोडक्शन बेस कर रहे हैं, अपना उत्पादन बेस हमारा प्रोडक्शन कंपनी है, तो वो हमारा यूजर ग्रुप कौन सा है और हम जिस क्षेत्र में लेके जा रहे हैं वो यूजर ग्रुप की मात्रा क्या है। जैसे अभी देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि हल्दीराम भुजिया वाला, आप देख रहे हैं हल्दीराम भुजिया वाले का, आप देखेंगे कि 5 रुपए का भी पैकेट है और 500 रुपए का भी पैकेट है। तो हमारे उन्होंने क्या आइडिया लिया, पहले 5 रुपए का नहीं आता था, शुरू में बड़े, लेकिन जरूर किसी ने उनको एक बोला गया कि हमारा अंतिम व्यक्ति तक वो पहुंचे, उन्होंने 5 रुपए का कर दिया। तो ये आइडिया जो है, ये हमारी कुशलता जो है, वो धीरे धीरे काम को करके ही आदित्य जी हमको लग रहा आएगा। दूसरा मैं एक और आपको इसमें जोड़ना चाहूंगा, शायद वो ये प्रश्न से ही आपसे जुड़ा हुआ रिलेटेड है कि आदित्य जी, जो एग्री बेस पे हम जा रहे थे ना, उसका एक तो ये है कि देश प्रेम, और हमारा 60% आबादी हमारी गांव में है अभी भी, और गांव से लोग पलायन कर रहे हैं, युवा गांव में नहीं है। आप गांव से जुड़े हैं हला, तो आप देखिएगा कि गांव में आप जैसे यूथ वहां पे नहीं मिलते हैं। छुट्टी त्योहार और बस वही शादी ब्याह पड़ी है तभी दिखाई पड़ेंगे। तो मेरा ये कहना था ना कि जो अभी एक आंकड़ा भारत सरकार ने दिया है कि 1.2% मात्र लोग कृषि पे है आधारित, 1.2% लोग कृषि कार्य कर रहे हैं। इतना बड़ा क्षेत्र के लिए जो लोग हैं, ये बहुत कम लोग हैं और खेती से सब विरत हो रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हमको भाई खाने के लिए तो चाहिए ना ऊपर, एक्सपोर्ट की बात होगी। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इस पे काम भी कर रहा हूँ, मतलब जो नाबार्ड के साथ है और जो कृषि वेश विभाग है उनके साथ भी मैं जुड़ा हूँ। तो आपको ये आंकड़ा इसलिए देना चाहता हूँ कि हम लोग इसलिए एग्री बेस पे थोड़ा ज्यादा फोकस है, और इसमें जो आप
प्रोडक्शन बेस या वो सब दिक्कत नहीं आएगी, आपको मार्केटिंग की दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैं कह रहा था ना कि शुरुआत थोड़ा सा करेंगे, जैसे आप स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, तो अगर आप ये बता पाएंगे कि हम इस चीज से स्टार्टअप कर रहे हैं, तो शायद हम और कुछ बता पाएंगे आपको उसमें कि इसमें ये चीज करने पे हमको ये लाभ मिल जाएगा, अगर ये हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो शायद हमारा जो रिस्क है वो थोड़ा कम हो जाएगा। सर मेरा दो स्टार्टअप से मतलब दो टॉपिक पे मेरा सर स्टार्टअप है सर। पहला है डिफेंस सेक्टर में सर मेरा पहला डिफेंस सेक्टर में ये है सर स्टार्टअप कि सर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में जो सबमरीन्स हैं एज कम्पेयर टू चाइना, सर चाइना के पास सर काफी अमाउंट ऑफ सबमरीन सर मैं मुझे पहला स्टार्टअप ये है सर कि मैं अपनी मतलब इंडिजीनियस सबमरीन को मैं मैन्युफैक्चर अपनी एक नई कंपनी लॉन्च करने वाला हूं सर, क्योंकि कुछ ही दिन पहले भारत सरकार का बजट आया था निर्मला सीतारमण के द्वारा, उसमें करीब 4 से 5 लाख करोड़ रुपए डिफेंस सेक्टर पे खर्च होने वाला था और उसमें ये प्रावधान था कि उससे 65% पैसा मतलब 65% जो उनको पैसा दिया जा रहा है उसमें वो 65% इंडियन चीजें मतलब इंडियन वेपन्स खरीदे और काफी चीजें इंडियंस खरीदे और बाकी सारा चीजें वो ऑल ओवर वर्ल्ड से, रशिया से, इजराइल से एंड देन सो मेनी कंट्रीज आर एग्जिस्ट। तो सर ये है कि मेरा पहला ये है कि मुझे खुद की एक अपनी एक इनोवेशन डिफेंस सेक्टर कंपनी ओपन करनी है। और सर दूसरा ये है सर, एक मेरा दूसरा प्लान ये है कि सर जैसे हर एरिया में कुछ शॉप्स होते हैं, कई सारे शॉप्स होते हैं, कई सारे मॉल्स होते हैं और कई सारे रूम्स होते हैं। इनफैक्ट सर मैं अभी आपने कहा कि बच्चे गांव में नहीं जा रहे हैं सर, देखिए मुझे अभी मौका मिला था, मेरा एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम हुआ और मैं खुद मेरे घर वाले काफी बार बुलाए कि आ जाओ घर पे, आ जाओ घर से ऑनलाइन एग्जाम दे दो, लेकिन मैं भी अकेले हॉस्टल में मतलब अपने स्टार्टअप के लिए और कुछ अपनी नॉलेज एक्वायर करने के लिए और कुछ पढ़ने के लिए हूँ। तो सर आपकी बात सही है कि बच्चों का रुझान गांव में नहीं है, अब अर्बनाइज हो रहे हैं सब कोई। और सर ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात मैं आपको बता दूं कि दुनिया का 70% मसालों का एक्सपोर्ट भारत करता है और 40% दालों का भी एक्सपोर्ट ही भारत करता है। और ये किसी ने सर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने भी ये कहा था कि सर जैसे हम अगर हमारी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन अगर डिजिटलाइज होगी और कुछ इनोवेशन और खेती में भी इनोवेशन होगा सर, इजराइल दुनिया का बहुत ही मतलब छोटा है और सर वहां पे देखा जाता है कि काफी आप वो सर लेयर टू लेयर आप कह रहे सर प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी पहली बार इजराइल में, पहले हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे जो उन्होंने इजराइल को विजिट किया था और वहां से काफी टेक्नोलॉजी इंडिया में लाई थी। और सर आप एक बहुत आपको मैं कांग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा सर कि आपने बताया था ओमान में आपका एक्सपोर्ट हुआ था उस खाद का, और श्रीलंका, बांग्लादेश। सर हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारे एक्सपोर्ट के लिए $400 बिलियन तक अभी रिसेंटली हम लोग का एक न्यूज देख रहा था सर, रिसेंटली $400 बिलियन फर्स्ट टाइम अपने इंडियन के एक्सपोर्ट करियर में $400 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ, तो काफी आपका भी योगदान रहा होगा मैं मानता हूँ, कुछ नहीं ज्यादा तो कुछ हद तक, और मे भी इन फ्यूचर आपका योगदान उसमें ज्यादा रहे कि हमारे देश से बाहर सामानें ट्रेड हो रही है, तो ये अच्छी बात है सर। लेकिन सर दूसरा मेरा ये स्टार्टअप था कि सर जो कई सारी शॉप्स हैं उस शॉप्स को मैं इंटीग्रेट करके और आसानी से फाइंडिंग शॉप की, मतलब किसी को अपनी दुकान रेंट पे लेनी होती है तो उसको अंदाजा नहीं होता कि क्या ये इसका प्राइस क्या है, वो घर पे बैठ के ऑन द स्क्रीन मोबाइल पे देख ले। और जैसे एक जमीन से रिलेटेड होता है कि इस एरिया में कितनी और काफी अलग अलग तरह के ब्रोकर्स मिल जाते हैं और वो ब्रोकर्स कुछ गलत चार्जेस लेते हैं, कुछ मतलब काफी नए लोगों को जैसे बाहर के किसी शहर से आए होते हैं तो उसमें उनका कमीशन बहुत हाई लेवल का हो जाता है। तो मैं सर उसको मिनिमाइज करके और एक अलग प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट करना चाहता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सर अगर मैं ऐसा कुछ इनोवेट कर रहा हूँ और संजोग से मैं सर CS ब्रांच से ही हूँ और AI मेरा फील्ड है, तो सर
इसमें मैं अगर इसको ओपन करूंगा तो सर डिस्ट्रॉय करने वाली कंपनी काफी होती हैं, और फंड जैसे एंजल इन्वेस्टर होते हैं और कई तरह के इन्वेस्टर होते हैं। अगर मेरी आइडिया अगर सक्सेसफुल, ये सर टोटली नया इनोवेशन है सर, अभी तक मैंने काफी रिसर्च किया है और इस पे सर मेरे दिमाग में जैसे आप कहा कि विजनरी होना चाहिए, लॉन्ग टर्म थिंकिंग होना चाहिए और रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। तो सर मैंने इसको काफी बार करीब सर जब मैं 8th से था तो मेरे पापा ने मतलब काफी सारे बिजनेसेस किए, तो मुझे सर डाइवर्स थिंकिंग आ गई है और काफी बिजनेसेस में फेल हुए हैं और काफी बिजनेसेस में सक्सीड भी हुए हैं। तो सर इसमें सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम बताया सर कि ये कुछ लीगल इश्यूज आ जाती हैं अच्छे से हमारी भारत सरकार में, मतलब काफी लीगल इश्यूज आती हैं, और दूसरा कि बड़ी बड़ी कंपनीज डिस्ट्रॉय करती हैं। और ये है सर मेरा स्टार्टअप का 2 फील्ड है। अब इसमें आप कुछ आपका मतलब अनुभव थोड़ा साझा करना चाहेंगे तो बिल्कुल कर दीजिए सर, कि आपके अनुभव से मुझे खुशी मिलेगी सर, और शायद जी मेरे कहीं ना आदित्य कहीं जी, जी आदित्य जी बहुत बढ़िया। नहीं, आपका उत्साह तो बहुत अच्छा लगा मुझे आदित्य जी। लेकिन जैसे रक्षा के क्षेत्रों में जहां तक बात है, तो उसके लिए देखिए भारत सरकार का अपना खुद का एक बहुत सारा कंपनियां हैं, वो कुछ प्राइवेट सेक्टर को जो देने की बात उन्होंने किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो उसमें वो दिखा है कि जो ऑलरेडी मतलब जो काम कर रहे हैं ना, मतलब उनको वो ज्यादा वरीयता देंगे, क्योंकि नए कंपनी को लेकर के अगर इतने बड़े रक्षा, जहाँ पे अपने देश का पूरा रक्षा से संबंधित सारी दारोमदार है, तो वो नई कंपनियों को अभी उस तरह से प्रमोट नहीं करेंगे शायद। लेकिन मुझे जहां तक मुझे है कि जो कंपनियां ऑलरेडी काम कर रही है देश में, बना रही हैं अपने औद्योगिक इसमें रक्षा सेक्टर में जो विभाग काम कर रहे हैं, वो सब को ज्यादा वो लोग वरीयता देंगे। और जैसा आपने अभी बताया मुझे कि बहुत नियम कानून कायदा है और उस तक पहुंचने में अभी उसमें, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप उस सेक्टर से हैं और आपका रुचि है, तो निश्चित रूप से आप उस क्षेत्र में थोड़ा और अध्ययन कीजिए और आगे बढ़िए। और निश्चित रूप से हमको आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और हम लोगों ने जो अभी यहाँ पे एक मेन अभी चर्चा परिचर्चा किया है, वो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के जहां तक संभावनाएं हैं आदित्य जी, उसको लेकर के कर रहे हैं। आपका उत्साह मुझे देख के और आपकी बातों से मुझे बहुत बहुत मैं आकर्षित हुआ। ऐसे यूथ की जरूरत है इंडिया को, और आप तो अच्छा है, आपने अपना सोच और आपने अपना बहुत अच्छा रखा हुआ है। इसमें आप निश्चित रूप से आगे जाएंगे और इस चीज को भी थोड़ा अध्ययन करिए, ज्यादा से ज्यादा अध्ययन की जरूरत है, और जानकारी जब इकट्ठा हो जाएगी तो आप निश्चित रूप से उस क्षेत्र में भी आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू आदित्य। थैंक यू सर। सो आई थिंक सर आज बहुत सारे बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिला होगा आपकी बात सुन करके, और आने वाला भारत तो वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में ही बसेगा अब, क्योंकि पहले जो माइग्रेशन सर हो रहा था गांव से शहर की ओर, अभी काफी हद तक रिवर्स माइग्रेशन भी शुरू हो चुका है। मैंने इधर भी एफबी वगैरह पे और अखबारों में भी हम पढ़ते रहते हैं, बहुत सारे आईआईटी के, आईआईएम के, या फिर बहुत अच्छी अच्छी संस्थाओं से पढ़े बच्चे जो है अब वापस लौट करके ये ऑर्गेनिक फार्मिंग या और किसी तरह का प्रयोग गांव में कर रहे हैं। आपने भी 2-3 एग्जाम्पल दिए थे, और हम उनका भी जरूर से अपने बच्चों के लिए सेशन कराएंगे। तो और कोई अगर कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो फिर, नहीं तो हम लोग इसको सर अब तो स्टूडेंट्स कोई है नहीं प्रश्न पूछने के लिए। गुड। ठीक है, उसमें बहुत बहुत एक तो आभार है प्रीति जी, और थैंक यू सर। और बीबीडी के पूरे परिवार को भी मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे अपने अनुभव साझा करने का, बच्चों के बीच में बोलने का अवसर दिया। और आगे मैं, जैसा अभी आप बता रहे थे, बहुत सारे रोल मॉडल है, जैसे आईआईएम के बच्चे अभी एमबीए करके आए थे और कोरोना काल में वो सर्विस छोड़ करके जब वापस आए 2020 में, अभी उन्होंने इतना बड़ा कमाल किया है, तो वो भी आपके बीच में कभी आएंगे। मुकेश पांडे नाम है उनका,
और उनका भी 3 करोड़ के लगभग बैलेंस शीट गया और अभी वो अच्छा काम कर रहे हैं और वो खास करके फोकस्ड है ये वर्मी कंपोस्ट को ही लेकर के, और वर्मी कंपोस्ट को लेकर के वो काफी आगे बढ़े हैं और सरकार की योजनाओं से भी लाभान्वित हुए हैं। युवा आगे बढ़े, उनको मेरी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और उद्यमिता के क्षेत्र में बहुत अपार संभावनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रीति जी। Yes, sir. Thank you, sir. Vaishali, now you can take the dice for further program. Okay, ma'am. Thank you very much, ma'am. Firstly, I would heartfully thank to a respected eminent resource person, Ram Sanjeevan Dubey, sir. Sir has told us and enlightened us about rural entrepreneurship and about various government schemes and policies on that. Sir emphasized on entrepreneur skills development and showed us the scope of entrepreneurship in rural areas. Sir showed us how women are also taking active participation in the same. Sir told about Pragya Devi's inspirational e-rickshaw story. Sir told about how farmers are doing multi-layered farming. Even 7-layered farming is also taking place in eastern UP. Sir showed how a barren land was turned into a highly fertile one under watershed project. Sir told us how FPO, that is Farmer Producer Organization, are doing wonders in terms of producing vermicompost and a lot of other things, and even exporting it to foreign countries. Sir told us a very beautiful slogan about entrepreneurial-based development. हाथ लगे निमन में, सबके उत्थान में. I'm sure that not only me, but an entire group of participants would already be feeling blessed by the wonderful knowledge and experience shared by Sir. I'm sure it will guide us through a path, help enhancing our knowledge to the world of good. Today, my words would not be enough to express the gratitude on behalf of IIC. I want to take this moment and thank our honorable patrons, Dr. Alka Das Gupta Ma'am, Chairperson, BBD Education Group, Mr. Virat Sagar Das Ji Sir, President, BBD Education Group, Respected Director, Dr. S.S. Chauhan Sir, BBD ITM. Now, I would like to thank our respected Faculty Coordinator, Dr. Preeti Mishra Ma'am, President, IIC, Dr. Abhimanyu Kumar Yadav Sir, Convener, IIC, Assistant Professor Vinay Kumar Yadav Sir, Faculty Coordinator, Assistant Professor Neha Gupta Ma'am, ARIA Coordinator, Dr. Neha Pandey Ma'am, Social Media Coordinator, IIC, Professor Rudrendra Bahadur Singh Sir, IPR Coordinator, IIC. Now, I would like to hand over the mic to a respected Dr. Abhimanyu Kumar Yadav Sir, Convener, IIC, to share his words and gratitude. Over to you, sir. Thank you, Vaishali. Good afternoon. आवाज आ रही है वैशाली? Yes, sir. Yes, sir. Ari. Hello. Yes, yes, sir. Okay, thank you. Good afternoon, everyone. Namaskar, sir. I, on behalf of BBD ITM Lucknow, extend a very hearty vote of thanks for everyone for their kind presence. We are grateful to our Honorable Chairperson, BBD Group, Dr. Alka Das Ma'am, for giving us this opportunity to organize such a session for our students. We also express our gratitude to Director Sir, BBD ITM, Professor Dr. Sailen Singh Chauhan Sir, for his consistent kind motivation and support. We, on behalf of BBD ITM, offer our sincere thanks to our Chief Guest and Speaker of this session, Sri Ram Sanjeevan Dubey Ji Sir, for enlightening us with his vast knowledge on the topic rural entrepreneurship in India, prospect and government policies. And पहले तो सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत कम समय में गागर में सागर जैसा अपने अनुभव शेयर किए। सरकार की जितनी स्कीमें हैं उनके बारे में बच्चों को बताया, और जैसे बच्चों का क्वेश्चन आंसर में उत्साह देखा, मुझे इससे लगता है कि जो प्रबंधक स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी मोटिवेटेड हैं
और आपके सहयोग से, आपके गाइडेंस से सर, ये बच्चे मुझे लगता है काफ़ी हद तक आगे बढ़ेंगे और अपना नाम इस उद्यमी एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ाएंगे. And sir, we are looking for your for in future also, sir. We will be like needing your support. Our students will be needing our support. And as मैडम ने कहा कि हम लोग भी बाराबंकी में जो है वहाँ विजिट करने के लिए अपने बच्चों को ले जाएंगे जब चीज़ें सामान्य हो जाएंगी. तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने अच्छा एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ आपने बहुत सारी चीज़ें बताई. ये एंटरप्रेन्योर्स के जो गुण होते हैं वो बच्चों में होने चाहिए, वो भी आपने बताएं. और एक बिजनेस में कैसे उतार चढ़ाव होते हैं, उनको कैसे जूझना है, इन सब के बारे में आपने बहुत अच्छे से बच्चों को समझाया सर. इसके लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू सर. थैंक यू वंस अगेन. एंड स्टूडेंट्स, आई विश कि आप सबको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होंगी. एंड होप कि आप इसको एज अ मोटिवेशन के तौर पे आप इसको अपने कार्यशैली में अपने इम्प्लीमेंट करेंगे और आगे बढ़ेंगे. थैंक यू ऑल फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद सर. बहुत अच्छा सेशन you, था, ma'am. बहुत इंटरेस्टिंग था. फैकल्टीज ने, बच्चों ने, सबने बहुत कुछ सीखा सर. आज हम लोगों ने, हम लोग किताबों में पढ़ते हैं सर, आपने हम लोग को पूरा प्रैक्टिकल एक दिखाया है, खेतों की तस्वीरें और ये सब बहुत सुंदर है. और हर कोई मतलब इसमें जो बच्चे हैं जो रूरल एरिया से जुड़े हैं वो इसमें ज़रूर आगे बढ़ें, क्योंकि आने वाला समय इसी का है. और आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप रूरल में चले गए तो आप ग्रामीण हो गए या फिर आप एकदम उसी परिवेश में चले गए. आप वास्तव में अपने देश के लिए उत्पादन कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं. आप जीडीपी में ऐड कर रहे हैं. आप जो भी प्रोडक्शन करेंगे वो जीडीपी में ऐड होगा. और आप अपने मतलब देश के लिए कार्य कर रहे हैं. और रूरल उसमें रह कर के भी आप जो है एक अर्बन वाला भी लाइफ जिया जा सकता है. आजकल टेक्नोलॉजी इतनी स्मार्ट हो चुकी है, इतना सब कुछ. जैसे वो 3 इडियट्स मूवी में हम लोगों ने देखा था कि वो इतना बड़ा इनोवेटर था फुनसुक वांगडू, एंड ही इज लिविंग इन सच ए रूरल एरियाज. और उसको अपने इनोवेशन से उसने बिल्कुल एक शहर से भी ज़्यादा स्मार्ट बना रखा था. सो urban or rural doesn't matter. What matters is that you are an entrepreneurship and you are a leader, and you are a leader of the society. You are giving employment to so many peoples. That is more important. So ultimately you are paying homage to your country. जब आप इतना सारा रोजगार दे रहे हैं लोगों को, इतना जीडीपी में ऐड कर रहे हैं, तो आप अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं. आप सिर्फ एक साधारण एंटरप्रेन्योर नहीं है, आप सोशल एंटरप्रेन्योर भी हैं. और आगे चल के फिर यहाँ से सर पॉलिटिक्स में भी लोगों का रास्ता खुल जाता है. जो बच्चे इंटरेस्टेड हो, मैं उनके लिए बता रही हूँ. तो नायक तो सर बहुत तरीके के होते हैं ना, सिर्फ हम जो पिक्चरों में देखते हैं वो तो पिक्चरों के नायक हैं. वास्तव में नायक तो सर वो हैं जो समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं. अब सर आपने इतना कुछ बताया है, इतने सारे लोग आपसे जुड़े हैं, वो मन ही मन आपको बहुत धन्यवाद भी देते रहते होंगे कि आपने उनका जीवन बदल दिया. और तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, जो हम उनसे भी यही कहेंगे, आप लोग भी कुछ ऐसा ही करिए. बहुत सारे लोगों का जीवन बदलिए, अपना भी बदलिए, देश की भी रूपरेखा बदलिए. हर काम नेताओं का ही नहीं होता, कुछ यंग एंटरप्रेन्योर्स का भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के लिए. सो सेशन अब हम एंड करेंगे सर. ओके सर, नमस्ते सर. नमस्ते. नमस्ते. बहुत अच्छा. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, everyone, for having patience and listening properly. And I hope you must have learned a lot, and you will take it to your life, and you will also work to change the society of India. Thank you so much, sir. Thank you all, everyone, all the faculties, all the students, and all other guests who are present here. Thank you, everyone. Now I am ending the session. Thank you so much, Ram sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir.